सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोवे सव्व साहुणं ऐसो पंच नमुकारो सव्व पापपणासनो मंगलानंच सव्वेसे परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान ની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। વાત્સલ્ય મૂર્તિ શ્રી દાદા ભગવાનને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। 33 કોટી દેવી દેવતાઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। વિતરાગ શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। આ ક્ષેત્રના રક્ષક દેવી દેવતાઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। જગત ભરના સંત પુરુષોનું યોગબળ જગત ભરના સંત પુરુષોનું યોગબળ અનેક પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો। અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની हम सौ महात्माओं ने परम शक्ति आपो, शक्ति आपो, शक्ति आपो। जगतना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो। जगतना सर्व जीवो समाधान ने पामो। जगतना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। हे अंतर्यामी परमात्मा, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિ પૂર્વક નમસ્કાર કરું છું અને પ્રાર્થના કરું છું કે हम सर्वे महात्माओं मोक्ष मार्ग ने नायक અને સહાયક સંજોગો પ્રાપ્ત થાઓ, પ્રાપ્ત થાઓ, પ્રાપ્ત થાઓ। પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કે
સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સામે બાજુ આપણી જે ગાડી પાર્ક કરી છે ને એમને અત્યારે અર્જન્ટ જરા ગાડી હટાવવાની છે. નંબર ફોર્ચ્યુનર છે અને એક 971 સમથિંગ ની ગાડી છે. એક્ઝેક્ટ સામે ગાર્ડન પાસે જે ગાડી લગાવી છે ને આપણી, હા, તો એ જરા ગાડી હટાવી લો ને. એક છે કે બે? બે ત્રણ છે. એટલે આપણી કઈ છે? આપણી જ છે બધી. અચ્છા, તો જેની ગાડી હોય ને પ્લીઝ જરા ચેક કરી આવજો. સેફટી ટેન્ક ખાલી કરવા તક આવે છે ને એટલા માટે. અમારા સન ક્યાં છે? હા, એને બીજે ફોન કેમ કહી દો ને આવી જશે. એમને ઓપ્શન બધા ક્યાં મૂકવાની બતાવી. બસ બસ બસ, એટલે ઈઝી પડે. जिसकी गाड़ी है वही जाइए, तो क्या है एडजस्ट हो जाएगा, उनको बार बार आना नहीं पड़ेगा. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે સવારનું સેશન આપણે ગુજરાતી રાખીશું, સાંજનું હિન્દી રાખીશું, કારણ કે સવારનું સેશન ઇન્ટરનેશનલ યુએસએ યુકે કેનેડા વાળા એટેન્ડ થાય છે એટલે લોકોને થોડું હિન્દી સમજવામાં તકલીફ પડે છે, અને સાંજનો સમય તો એ લોકોને મધ્યરાત્રિ હોય એટલે વાંધો નથી. એટલે સાંજે આપણે હિન્દી રાખીશું, સવારે ગુજરાતી રાખીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. બસ આપણા બધાનું બહુ સદભાગ્ય છે કળિયુગની અંદર અને આવા કોવિડના પેન્ડેમિકની અંદર પણ જે રીતે આપણને આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનનો લાભ ઘેર બેઠા અથવા ઘરની નજીક જે મળી રહ્યો છે એ આપણા સર્વનું સદભાગ્ય છે. બીજી વસ્તુ, આવું આ અદ્ભુત વિજ્ઞાન જેને આપણે આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન ટાઇટલ આપ્યું છે, એ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન ખરેખર તો સતયુગનું જ્ઞાન છે, કળિયુગનું જ્ઞાન નથી. કળિયુગમાં જ્ઞાન આવું હોય જ નહીં. કળિયુગમાં તો બધા જ ધર્મોની વાતો ફોર્મેટ સાથે જ હોય. વિધાઉટ ફોર્મેટ કોઈ પણ ધર્મગુરુ વાત કરી શકે નહીં. બધાને ફોર્મેટની જ વાત કરવી પડે. એક ભગવાનનું ટાઇટલ જોઈએ, એક ગુરુ જોઈએ, મંદિર જોઈએ, મંત્ર જોઈએ, શાસ્ત્ર જોઈએ, સંસ્થા જોઈએ, રિચ્યુઅલ જોઈએ, વર્તમાન ગુરુ શિષ્ય જોઈએ અને વરઘોડા જોઈએ. આટલું જોઈએ એનું નામ ફોર્મેટ. અને આ વિજ્ઞાન બિયોન્ડ ફોર્મેટ છે, જેમાં ફોર્મેટ આવતું નથી. ને દુનિયાનો કોઈ પણ ધર્મગુરુ ફોર્મેટ સિવાય વાત કરી શકે નહીં. ફોર્મેટ સિવાય જો કોઈ ધર્મગુરુ વાત કરતા હોય તો કાં તો ધ્યાન નહીં કરતા હોય. શેની કરતા હોય? ધ્યાન નહીં કરે અથવા તો મંત્ર જાપ નહીં કરે. ચેન્ટિંગ જેને કહેવાય ને, હરે રામા હરે કૃષ્ણ કે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, એમાં મંત્ર તો આવે જ. ધ્યાનની અંદર પણ ફોર્મેટ આવે. કોઈ ભગવાનનું, ગુરુનું, જ્યોતનું, મંત્રનું કોઈ સિમ્બોલ તમારે લેવું પડે, જે આપણે ગઈકાલે વિગતવાર વાત કરી હતી. એટલે આપણે આજે વિગતવાર નથી કરતા. ટૂંકમાં ફોર્મેટ વગર કોઈ વ્યક્તિ આ કળિયુગની અંદર કશું બોલી શકે નહીં. આ વિજ્ઞાન એક જ એવું છે કે જે બિયોન્ડ ફોર્મેટ છે, જેમાં ફોર્મેટની એકે વાતો નથી આવતી. આ વિજ્ઞાન એ રામકૃષ્ણ મહાવીર જેવા સમર્થ પુરુષોએ પણ આ જ વિજ્ઞાન રિયલાઇઝ કર્યું હતું. જે લોકો મુક્તિને પામેલા છે એ બધાએ આ જ વિજ્ઞાનને રિયલાઇઝ કર્યું. માટે આ વિજ્ઞાન એ સનાતન સત્ય છે. એ કોઈ વ્યક્તિનું ક્રિએટ કરેલું નથી. એ યુનિવર્સલ ટ્રુ સાયન્સ છે. એ લો ઓફ નેચર ઉપર આધારિત છે. એ 6 ઇટર્નલ એલિમેન્ટ્સ ઉપર આધારિત છે. એ કોઈના વ્યક્તિગત વ્યૂ પોઈન્ટ ઉપર આધારિત નથી. 6 સનાતન તત્વો હતા, છે અને રહેશે. કુદરતનો કાનૂન પણ હતો, છે અને રહેશે. અને લો ઓફ નેચર બધા માટે
એક જ સરખો છે. એટલે આ વ્યૂ પોઈન્ટ નથી, આ વ્યૂ પોઈન્ટ થી બિયોન્ડ વાત છે. તમે કોઈ વ્યક્તિની વાત કરો છો ત્યાં ઓટોમેટિક વ્યૂ પોઈન્ટ થઈ જાય છે. when you put up the name of the person, it's already transferred in a viewpoint of the person. But when you talk about the universal truth, it is not subject to person, it is subject to all. આપણી બધી વાતો યુનિવર્સલ ટ્રુથ છે, લો ઓફ નેચર ઉપર આધારિત છે. હમણાં થોડા સમયથી હું પોતે આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનને હિન્દુ ફિલોસોફી, હિન્દુ તત્વજ્ઞાન સાથે જોડવા માંગુ છું. કારણ કે હિન્દુ ફિલોસોફી એ પણ સનાતન છે. સનાતન ધર્મ, સનાતનનો મતલબ થાય જેની આદિ હોતી નથી અને જેનો એન્ડ પણ હોતો નથી. આ બે વસ્તુ. બીજી વસ્તુ, સનાતન ધર્મનો કોઈ સ્થાપક ના હોય. શું ના હોય? કોઈ સ્થાપક ના હોય. અને નંબર 3, સનાતન ધર્મ સનાતન સિદ્ધાંતો ઉપર જ હોય, જેને આપણે કુદરતનો કાનૂન કહીએ છીએ. સનાતન ધર્મ સનાતન તત્વો પર આધારિત હોય, જેને આપણે કુદરત અને કુદરતના 6 તત્વો કહીએ છીએ. અને સનાતન ધર્મથી જે આ બધી અવસ્થાઓ બનેલી છે એને આપણે કુદરતી રચના કહીએ છીએ. એ જ કુદરતી રચનાને હિન્દુ ફિલોસોફીમાં વર્શિપ કરતા હતા. સૂર્યને પૂજવું, ચંદ્રને પૂજવું, દરિયાને પૂજવું, નદીની આરતી ઉતારવી, પહાડને પૂજવું, પુષ્પને પૂજવું, વનસ્પતિને પૂજવું, માણસની પણ એક વેલ્યુ કરી અતિથિ દેવો ભવ તરીકે. અને સૂક્ષ્મ જીવો છે એને પણ જીવો અને જીવવાદોના સિદ્ધાંત ઉપર આપણી ભારતીય ફિલોસોફી રચાયેલી છે. એટલે આ બધી વસ્તુ સનાતન સાથે સંકળાયેલી છે. શું છે? આ કોઈ વ્યક્તિના વ્યૂ પોઈન્ટ સાથે નથી. એટલે હિન્દુ ફિલોસોફી અને આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન એ બંને એક જ છે. પણ હિન્દુ ફિલોસોફીને જે રિલિજિયનમાં ટ્રાન્સફર કરી છે એને આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. હિન્દુ ફિલોસોફી એટલે રિલિજિયન નહીં, હિન્દુ ફિલોસોફી એટલે સનાતન ધર્મ. અને સાંપ્રદાયિક ધર્મો છે એ બધા વ્યૂ પોઈન્ટ છે, એ બધા ફોર્મેટ છે. પણ હિન્દુ ફિલોસોફી ફોર્મેટ નથી. હિન્દુ ફિલોસોફીમાં જે કલ્ચર છે એમાં ફોર્મેટ છે, રિલિજનમાં ફોર્મેટ નથી. પણ કલ્ચરમાં છે, જેને આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિ કહીએ છીએ. ઇન્ડિયન કલ્ચર, ધ વે ઓફ લિવિંગ. મેં ગઈકાલે પણ બહુ વિગતવાર વાત કરી હતી કે હિન્દુ ફિલોસોફી એ 3 ભાગમાં વહેંચાઈ છે. એક માનવ ધર્મ, જેને હ્યુમેનિટી સાથે જોડવામાં આવે છે. બીજો ધાર્મિક ધર્મ, જેમાં પાપ, પુણ્ય અને પાપનું પ્રાયશ્ચિત, આ બીજું લેવલ છે, જેની અંદર ફોર્મેટ પણ હોય. અને 3rd લેવલ છે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ, એ જે કુદરતના કાનૂન અને 6 સનાતન તત્વો પર આધારિત છે. હવે 3rd ગ્રેડની હિન્દુ ફિલોસોફી બનેલી છે. એટલે હિન્દુ ફિલોસોફીમાં માનવ ધર્મની પણ વાત આવે, ધાર્મિક ધર્મની પણ વાત આવે અને આધ્યાત્મની પણ વાત કરવામાં આવે. આધ્યાત્મની વાત જેને મુક્ત થવું છે, જેને આ જગતનું બ્રહ્માંડનું રહસ્ય જાણવું છે, જેને સનાતન સુખ જાણવું છે, જેને સનાતન સુખની અનુભૂતિ કરવી છે, જેને આત્માની અનુભૂતિ કરવી છે, જેને જન્મ મરણથી મુક્ત થવું છે, એના માટે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ છે. જેને પાપોથી બચીને પુણ્ય કરવું છે એના માટે ધાર્મિક ફિલોસોફી છે. અને જેને માનવ ધર્મ પાળવો છે એના માટે સામાજિક ધર્મ છે. આવી 3 ગ્રેડના ધર્મો હિન્દુ ફિલોસોફીમાં છે. એમાં આપણે આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનની વાત કરીએ છીએ. આ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન સદીઓથી છે, આજનું નથી. વિજ્ઞાન હંમેશા સનાતન સિદ્ધાંતો પર હોય. એ વિજ્ઞાનની પ્રેઝન્ટેશન થાય કે ન થાય, પણ પ્રિન્સિપલ સનાતન હોય. ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત શોધાયો એ પહેલા નતો, બોલતા નથી, એ પહેલા નતો, એ તો હતો. We discover, we don't create it. It is there. Yes or no? આ બ્રહ્માંડના રહસ્યો જે ઋષિમુનિઓ ખોળ્યા છે, ક્યારે ભરતી થાય, ક્યારે ઓટ આવે, પૂનમે ભરતી આવે,
અમાસે ઓટ આવે, એકમ દીપ તીજ પૂનમ, સૂર્યગ્રહણ, ચંદ્રગ્રહણ, આ બધા રહસ્ય ખોજ્યા છે. એ ના ખોજ્યા હોય તો પણ હતા નહીં, હતા. ઇટ ઇઝ ધેર. વી જસ્ટ ડિસ્કવર ઇટ, નોટ ટુ ક્રિએટ ઇટ. ડિસ્કવર કરીને લોકો સમક્ષ પ્રેઝન્ટ કર્યું. એનું નામ સાયન્ટિસ્ટ. સાયન્ટિસ્ટ કોઈ નવી વસ્તુ ના કહી શકે. સાયન્ટિસ્ટ બ્રહ્માંડનું જે રહસ્ય છે એમાંનું એક રહસ્ય રિસર્ચ કરી જે પ્રૂવ થયેલું સાયન્ટિફિકલી. એમાં અધ્યાત્મ વિજ્ઞાન એ અનુભવી જ્ઞાની પુરુષના દર્શનમાંથી સિદ્ધ થયું છે. એ સિદ્ધ થયેલું સાયન્સ હું તમને બતાવું છું. પણ એ સાયન્સ અમે રિયલાઇઝ નતું કર્યું કે પહેલા પણ હતું, અને અમે નહીં હોય ત્યારે પણ, અને અત્યારે પણ એ જ સાયન્સ છે. સાયન્સને ડિસ્કવર કરી શકાય, ક્રિએટ ના કરી શકાય. સો સાયન્સની સાથે ટાઇટલ લાગુ પડતું નથી. આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન એ કોઈ વ્યક્તિનું નથી. આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન તો હતું, છે અને રહેશે. એનું પ્રેઝન્ટેશન અમારું છે, પણ ક્રિએશન અમારું નથી. આવી રીતે આ વિજ્ઞાન જે આપણને બધાને પ્રાપ્ત થાય છે, જે વિજ્ઞાન બ્રહ્માંડના બધા રહસ્યો ખુલ્લા કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે, અને જે વિજ્ઞાન સામાજિક, ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક તમામ લેવલના પ્રશ્નોનું પરમેનન્ટ સોલ્યુશન આપે છે, કે જે સોલ્યુશન પ્રાપ્ત થયા પછી કોઈ પણ પ્રકારના સોલ્યુશનની જરૂર પડતી નથી. એવું આ અદ્ભુત વિજ્ઞાન છે. માટે જે મહાત્માઓને જે પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછવા હોય એ પૂછી શકે છે, અને પોતાના જીવનની અંદર પોતાના જે કંઈ પ્રશ્નોનું સમાધાન મેળવી અને આગળ વધવાની પ્રક્રિયાની ચાલુ થાય છે. બીજું, તે સિવાય પણ કોઈને સમયની મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના જીવનમાં આ વિજ્ઞાન સાંભળ્યા પછી, સમજ્યા પછી, ઉપયોગ કરીને જે અનુભવ થયો છે એ અનુભવ શેર કરવો હોય તો શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ કરી શકે છે. તમારો અનુભવ તમારા માટે તો પ્રેરણાદાયક છે, પણ તમારો અનુભવનું પ્રેઝન્ટેશન એ બીજાને પણ પ્રેરણા આપશે, એન્કરેજ કરશે. તો વારાફરતી જેને પ્રશ્ન પૂછવા હોય પૂછી શકે છે. જય સચિદાનંદ. રૂમાલ નથી લાયા? રૂમાલ નથી લાયા? અંદર બેગમાં આમાં કાળી બેગમાં બેગમાં. જેને પ્રશ્ન પૂછવા હોય વારાફરતી પૂછો પ્લીઝ. હિન્દીમાં પૂછો તો હિન્દીમાં જવાબ આપીશ, ગુજરાતીમાં પૂછો તો ગુજરાતી. તમને દવા આપો છો? દવા શું कुछ करना है? जी ओके, कोई बात. હા, જેને પ્રશ્ન પૂછવો હોય પૂછી શકે છે પ્લીઝ. યસ. આ નડતું નથી ને? हाँ प्लीज प्रश्न कीजिए, जिसको भी प्रश्न करना है, गुजराती में, हिंदी में, नो प्रॉब्लम. બીજું જોઈએ
બીજું હોય તો જોઈન કરી દો ને આપણે. ના ના, એને આખું મેનુ માંથી કાઢી નાખો ને બીજું જોઈન કરો એમ કહું છું. હે બહાર બી બીજો છે ને? નહીં, એ પ્રશ્ન પૂછે છે, તમે રિપીટ કરો. વાયર 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 હવે પાછળ જ કરો, પાછળ આપી દો, એ લોકોને પાછળ આપી દો પ્લીઝ. યસ. વોઇસ મોટો કરજો. ચાલુ છે. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, साइंस का उपयोग करने के बाबत में कुछ पूछना चाहता हूँ। या आवाज थोड़ा मोटा बड़ा कीजिए उनका। साइंस के बारे का उपयोग करने के बारे में मैं पूछना चाहता था। उदाहरण के लिए कि साइंटिस्ट ने कोई क्लास ली और चैप्टर को अच्छे से समझा दिया, समझ लिया, और फिर उन्होंने करुणावश कहा कि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कर देवे। तो क्लास में विद्यार्थी बैठे थे, तो एक ने माइक पकड़ लिया और कहा कि साहब हमको ये बताएं कि हमारे पास गाय है, वो दूध नहीं देती। तो आचार्य हम तो साइंस की बात कर रहे थे, फिर भी करुणावश उसका हल उन्होंने दे दिया। फिर प्रश्नोत्तरी बढ़ती रही, समय समाप्त हो गया। दूसरे दिन फिर भगवंत ने प्रवचन दिए और कहा कि कोई प्रश्न पूछिए। फिर उसी विद्यार्थी ने आज भैंस के ऊपर प्रश्न चालू कर दिए, उत्तर देते रहिए प्रभु करुणावश, समय फिर समाप्त हो गया। बाकी विद्यार्थी बैठे रहे। तीसरे दिन डर लगा कि आज कोई गाय भैंस के अलावा तीसरा तो नहीं आ जाएगा प्राणी। तो इसमें चिंतन चला कि स्वामी जी ने कहा कि इसको मैं कुदरती रचना देखूं। तो वो जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसको कुदरती रचना देखते रहे। तो कब तक देखें? वो तो प्रक्रिया ही खत्म नहीं हो रही। तो क्या कह दें कि हमें माफ करें, दूसरों को भी समय दें। तो चिंतन चला तो स्वामी जी ने कहा था कि कहो तो भी कुदरती रचना है, न कहो तो भी कुदरती रचना है, तो कहते हैं। फिर चिंतन चला, कैसे कहते, कहें न कहें, कैसे कहें। फिर चिंतन चला, तो फिर उसमें से स्वामी जी आया कि कहना भी तो अपने हाथ में नहीं है, वो भी कुदरती रचना है, तो कैसे कह सकते हैं। तो थोड़ा इसको विस्तृत थोड़ा था कि कैसे अप्लाई करना संजोगों में, वो चाहते थे। बात काफी, प्रश्न आपका भले लंबा है, बात काफी सरल, सहज और सुगम है। जैसे अज्ञानी लोग ये 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है और बुद्धि से जो भी समझ में आता है, उसी प्रकार उसी अवस्था को वो उसी प्रकार स्वीकार करते हैं, मानते हैं। उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर 10 बार एक व्यक्ति ने झूठ बोला है तो 10 बार वो व्यक्ति ने झूठ बोला है, ऐसा ही वो मानेगा सामने वाला व्यक्ति जी। 50 बार एक व्यक्ति ने चोरी किया है और मैं देख रहा हूं तो 50 बार उन्होंने चोरी किया है ऐसा ही देखूंगा, एक भी बार चेंज नहीं करूंगा जी। समझ में आया जी। और 50 बार मैंने खाना खाया है
तो मैं यही देखूंगा कि मैंने खाना खाया है 50 बार, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मैंने खाना नहीं खाया है। ठीक है जी। और जो लोग शादी करते हैं वो सब लोग मानते हैं कि हमने ही शादी किया है, जी। कोई तकलीफ नहीं, ये मेरे माता पिता है वो भी सब लोग मानते हैं, भाई बहन पति पत्नी परिवार नौकरी धंधा एजुकेशन सब में मानते ही ये लोग। तो रिलेटिव सत्य मानने में समझने में स्वीकारने में कोई कठिनाइयां नहीं है, हजारों बार लाखों बार करोड़ों बार, यस और नो। तो ऐसी सभी अवस्थाओं को करोड़ों बार कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है? अज्ञानी रिलेटिव से तो देख सकता है, तो विज्ञानी सनातन सत्य क्यों नहीं देख सकता है? प्रकार कोई भी है, दृष्टि तो एक ही है, कुदरती रचना। अज्ञानी को एक ही दृष्टि है, डूअरशिप एंड ओनरशिप। कितनी भी अवस्था है वही रहेगी, डूअरशिप एंड ओनरशिप। और विज्ञानी को यही रहेगा, परिस्थिति कोई भी है, कुदरती रचना। और कितनी भी बात कर दी, क्यों, मतलब तकलीफ क्या है जी? भाई शादी किया है 50 साल हो गया 17 साल हो गया, तो वाइफ को वाइफ देखने में क्या तकलीफ है? बोलते नहीं है कि नहीं अभी थक गया, अभी वाइफ नहीं है। ये तो विजन की बात है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं होती है, ये बर्थ नेचुरल हो गया है। अज्ञान जैसे बर्थ नेचुरल हो गया है, ऐसा विज्ञान एक दिन उपयोग करते करते बर्थ नेचुरल हो जाएगा। वही हमारी सहज दृष्टि है, फिर पुरुषार्थ नहीं रहेगा, स्वभाव रहेगा, उसको छोड़ना नहीं, उसको बनाए रखना। उसको सहज हो तब तक इसको लगे रहना है। जी आप समझे? जय सच्चिदानंद। પ્રકૃતિમાં પરમાત્મા જોવાનું પ્રેક્ટિસ કરવી, એના ઉપર જરા ડિટેલમાં અર્લી મોર્નિંગમાં કોઈ મનના સંયોગો ન હોય ત્યારે કઈ રીતે આપણા અંદરના ઉપયોગમાં રહેવું એના ઉપર જરા ડિટેલ. પ્રકૃતિને પરમાત્મા જોવું એટલે શું? પ્રકૃતિમાં પરમાત્મા જોવા એટલે શું? રિલેટિવમાં રિયલ જોવું. આ દેખાય છે શું છે? એની અંદર શું છે? હા, આ લાઈટ છે, પણ લાઈટ ની અંદર પાવર ના હોય તો પ્રકાશિત થાય. આ પંખો ચાલતો હોય અને પાવર ના હોય તો પંખો ચાલે? માટે પંખો ચાલે છે એટલે પાવર છે, પાવર એનો પ્રાણ છે ને પંખો મિકેનિઝમ છે. યસ કે નો? એમાં બોડી એ મિકેનિઝમ છે, પણ જીવતું છે કારણ કે અંદર ચેતન છે. જો ચેતન ના હોય તો બોડીને મળદું કહેવાય, એ છે તો જ એને જીવતું કહેવાય, એ નથી તો બોડીને મળદું કહેવાય. એટલે જ્યાં સુધી માણસો હલનચલન કરે છે, બોલે છે, ક્રિયા કરે છે, ત્યાં સુધી અંદર પરમાત્મા છે. પરમાત્મા ના હોય તો આ મશીનની કોઈ વેલ્યુ? યસ કે નો? માટે હલનચલન કરે છે માટે પરમાત્મા છે. ચેતન તત્વ હોય તો જ પ્રકૃતિ જીવતી કહેવાય. આકાર ઉપરથી જે ઓળખાય એને પ્રકૃતિ કહેવાય, અને આત્મા નિરાકાર છે. ખ્યાલ આવ્યો? આપણને ફેન છે એવું ખબર પડે પણ ઇલેક્ટ્રિસિટી દેખાય નહીં. અચ્છા, અર્લી મોર્નિંગમાં આપણે ત્યારે કઈ રીતે અંદર ઉપયોગ ગોઠવવો એના ઉપર જરા. અર્લી મોર્નિંગ હોય કે નાઇટ હોય કે ડે ટાઈમ હોય, ઉપયોગનો એક જ ઉઠતાની સાથે જ ખબર પડવી જોઈએ કે ઉઠે છે કોણ? તો કે પ્રકૃતિ. હું કોણ છું? શુદ્ધાત્મા. દિવસ દરમિયાન બધી પ્રવૃત્તિ કરે છે, નાવાની, ધોવાની, ખાવાની, પીવાની, નોકરી, ધંધો બધું કોણ કરે છે? પ્રકૃતિ કરે છે. હું કોણ છું? તો કે શુદ્ધાત્મા. એટલે શુદ્ધાત્મા અને મશીન, મિકેનિકલ મશીન, એ બંને જુદા જ છે. મિકેનિકલ મશીન એક્ટિવિટીઝ કરે. શું કરે? અને પરમાત્મા અંદર કેટાલિસ્ટ હોય, હાજર હોય. કેવા હોય? હાજર. પરમાત્મા ના હોય તો પ્રકૃતિ કશું કરી શકે? એટલે ક્રિયા મનની, વચનની અને કાયાની ત્રણેય ક્રિયા પ્રકૃતિ કરે છે. એટલે મન, વચન, કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. અને હું કુદરતી રચનાથી મુક્ત એવો
સમજી ગયા? હા બરાબર. બસ સમજાઈ મારી વાત? હા બરાબર. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી. જય સચિદાનંદ. આપણે એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય સુધીનો જે વિકાસનો ક્રમ હોય એ કુદરતી હોય. હવે એનામાં આપણે એકેન્દ્રિયમાં જે વનસ્પતિ આવે એના આપણે ઉપયોગ કરીએ તો એનામાં ક્રેડિટ ડેબિટ જેવું કઈ બંધાય છે એનામાં કે આપણે એનો ઉપયોગ કર્યો વનસ્પતિના એકેન્દ્રિયમાં તો એનું ક્રેડિટ ડેબિટ આપણે આપવું પડે ચૂકવવું પડે એવું આમાં મને લાગે કે ક્રેડિટ ડેબિટ એટલે સમજણ ના પડે. ક્રેડિટ ડેબિટ સમજાય પણ તમે રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્ટ ખ્યાલ ના. એટલે વનસ્પતિ જે એકેન્દ્રિય કહેવાય હા એને આપણે ઉપયોગ કર્યો તો એને ક્રેડિટ મળે અને આપણું ડેબિટ એને ચૂકવવું પડે એવો કઈ ક્રમ હોય કે પછી ઓટો મોડ છે એમાં આપણે એ સબ્જેક્ટમાં જવાની જરૂર નથી. આપણા પુણ્યથી આપણને ભેગું થાય છે એ પુણ્ય એને મળે છે ખ્યાલ ને આપણું પુણ્ય માઇનસ થાય છે. અચ્છા એ છે કે પેલો છેલ્લો આપણે પુણ્ય આપવાનું નથી એને એના નિમિત્તે લઈ લઈએ તો ભેગું થયું આપણને. આપણા પુણ્ય નિમિત્તે તો ખાવાનું ભેગું થયું ખાવાનું ભેગું ના થાય પાણી ભેગું ના થાય વ્યક્તિ ભેગા ના થાય બધું પુણ્યનું તો ફળ છે. પણ પેલા લોકોને ટ્રાન્સફર થાય છે કારણ કે પેલા લોકો જાતે પુરુષાર્થ કરી શકતા નથી અને મનુષ્યને ટ્રાન્સફર નથી થતું કારણ કે મનુષ્ય જાતે એક્ટિવ છે માટે. હવે પેલું છેલ્લા અવતારમાં એમ કહેવાય કે ભાઈ શરીર નથી હોતું નિર્વાણ થાય ત્યારે નિર્વાણ થયા પછી એટલે તો મતલબ કે પેલું જે છેલ્લા અવતારમાં તો હોય નિર્વાણ થયા પછી અવતાર ના કહેવાય. એટલે બંધાવા માટે જેટલો ખોરાક છે છેલ્લા સુધી ચાલતો હોય છેલ્લા શરીર હોય ત્યાં સુધી તો એનો મતલબ કે આપણે કોઈ ડેબિટ ચૂકવવાનું એનામાં આપણા પર ના લાગુ પડશે. છેલ્લા અવતારમાં કર્મ બંધાય જ નહીં ને માતાના ગર્ભમાંથી જ ના બંધાય. એટલે તે વખતે જે શરીર ઉપયોગ કરે વનસ્પતિનો એ બધું કુદરતી રચના કોઈ કર્મ જ ના બંધાય. શરીર ને આત્મા બે જુદા હોય પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છેલ્લા અવતારમાં લાઈવ ના હોય એટલે કર્મ જ ના બંધાય. કર્મ ક્રિયાથી બંધાતા નથી. કર્મ અજ્ઞાનથી અને ભાવથી બંધાય છે અને છેલ્લા અવતારમાં અજ્ઞાન વાળો પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું અસ્તિત્વ હોતું નથી એટલે કર્મ બંધાય નહીં. પણ જે કરેલા કર્મ છે એ બોડી દ્વારા ભોગવાઈ જાય અને જેવા કર્મો પતી જાય એટલે આત્મા ક્યાં જાય? મોક્ષે જાય કારણ કે હવે રિબર્થ થવાનો નથી. પણ અજ્ઞાન કાઢતા પહેલા જે કર્મો બંધાઈ ગયા હતા એનો આ છેલ્લો અવતાર આવ્યો. હવે અજ્ઞાન તો નીકળી ગયું છે માટે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા હવે આવશે. અજ્ઞાન હોય તો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા અજ્ઞાન હોય તો પુરુષાર્થ હોય અજ્ઞાન હોય નહીં તો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ના હોય પુરુષાર્થ ના હોય. પણ શરીરની આત્મા હોય છેલ્લા અવતારમાં શરીરનો અંત આવે આત્મા ક્યાં જાય? જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી જન્મ મરણ છે. શું છે? અજ્ઞાન નથી તો પછી લાસ્ટ બર્થ છે. દર્શન ખુલ્લું થઈ ગયું પછી કોઈ બંધાવાનું બંધાતું નથી પણ જે બંધાયું એના માટે લાસ્ટ બર્થ હોય. સમજાઈ ગયું? યસ. ત્યાં છે ને એક કામ કરો ને ત્યાં એક ખુરશી મૂકી દો એટલે એક લોકોને ખ્યાલ આવે કે મારે ક્યાં બેસવાનું છે. લેડીઝ હોય કે જોઈન્ટ્સ હોય કોમન એક ખુરશી મૂકી દો એ ખુરશી ઉપર જ બેસે અહીંયા બેસે ને એક આપી દો એક આપી દો એટલે બધાને એમ જ કહું ખુરશી ઉપર બેસીને પ્રશ્ન પૂછવાનો એટલે પછી વાયર ખેંચ ખેંચતા કરવો પડે. એનું માપ હોય ત્યાં જ મૂકો પછી. પાણી છે તા બસ ચાલો બંધ. અવાજ મોટો કરજો. હા બોલો. જય સચિદાનંદ. આ એંગલ રાખજો આમ નહીં આમ. હા હા એટલે અવાજ મોટો આવશે પ્લીઝ. स्वामी जी मन वचन काया से जो कुछ भी होता है
वो सब पहले से ही तय है, पहले से ही था। यस, ऑटो मोड में होता है। लेकिन अभी हमारा जो पुरुषार्थ है, एक मिनट थोड़ा आगे आ जाइए क्योंकि हमिंग आता है। मैं એટલે પહેલા જ કીધું તમે સેટ એવું કરી નાખો કે ફરીથી ચેન્જ કરવું પડે નહીં. बस यस प्लीज. स्वामी जी मन वचन काया से जो भी हो रहा है वो सब ऑटो मोड में हो रहा है। यस, और हमारा ये पुरुषार्थ होना चाहिए कि हर संजोग में हम खुद को मन वचन काया से अलग देखें। तो लेकिन जब संजोग आते हैं तो वो याद में नहीं रहता है, मतलब मैं ही कर रहा हूँ या जो मालिकीपन का भाव है वो बना रहता है। तो उसको प्रैक्टिकली मतलब अप्लाई कैसे करें, पुरुषार्थ कैसे करें? जैसे कोई भी क्रिया करते हैं तो आपका नाम भूल जाते हैं, नहीं। क्यों? नाम क्यों नहीं भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। नहीं, मगर तो क्रिया तो शरीर करता है ना, तो फिर नाम की क्या जरूरत है? जैसे हम नाम को नहीं भूलते हैं, प्रकृति के नाम को, ऐसे परमात्मा को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। क्या नहीं है? गलती नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थ्रू योर विजन, नॉट योर वर्ड्स। ये प्रकृति कर रही है, मैं शुद्धात्मा हूँ। ये प्रकृति कर रही है, विचार आया, प्रकृति को आया, मैं शुद्धात्मा हूँ। जबान से निकला, वो प्रकृति करती है, मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई क्रिया हुई, ये प्रकृति करती है, मैं शुद्धात्मा हूँ। सामने वाला कुछ बोलता है, ये उनकी प्रकृति बोलती है, उनके अंदर शुद्धात्मा है। सामने वाला क्रिया करता है, उनकी प्रकृति करती है, उनके अंदर शुद्धात्मा है। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे मन वचन काया की क्रिया करने वाला और उनके पीछे जो है वो शुद्धात्मा, वो अलग रहेगा। मगर अलग प्रैक्टिस करने से आपकी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिस से होता है और ये लाइव प्रैक्टिस है, ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज इज ओनली प्राइमरी, बट व्हेन यू पुट इन अ प्रैक्टिस यू गॉट इट द रिजल्ट। उससे बहुत सारे फायदे हैं। टेंशन भी नहीं होगा, डूअरशिप भी नहीं होगी, ओनरशिप भी नहीं होगा, मेरा क्या होगा वो प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि जो भी बातें प्रकृति की है और प्रकृति तो कुदरती रचना है। इसलिए हमको प्रकृति को चलाना है, प्रकृति को सुधारना है, प्रकृति को बदलना है, ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और दूसरे की भी प्रकृति सुधारना है, वो भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। प्रकृति के उदय क्रम में जो कुछ भी करें, प्रकृति को सुधारने का प्रयास करें या दूसरे प्रकृति को बदलने का प्रयास करें, मगर हमको ये कुदरती रचना के रूप में देखना है। हम प्रकृति को बदल रहे हैं, हमारी या दूसरे की, ऐसा नहीं देखने का है। ये बदलने का प्रयास करते हैं, वो भी कुदरती रचना, और दूसरे का बदलने का प्रयास करते हैं, वो भी कुदरती रचना। चेंज होती है वो भी कुदरती रचना, नहीं होती है वो भी, बस आप समझे, क्योंकि एवरीथिंग इज डिसाइडेड। मगर पहले डिसाइडेड भाग को हम पुरुषार्थ मानते थे, ये हमारी अज्ञानता। अभी हमको धीरे धीरे समझ में आएगा कि डिसाइडेड भाग तो डिसाइडेड ही है, मगर हम मानते या समझते नहीं। इतना ही इग्नोरेंस थी बस। और जो कुछ प्रकृति है, प्रकृति का जो पैकेज है मन वचन काया का, वो पैकेज हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कैरी ऑन बिफोर द बॉर्न द होल पैकेज ऑफ योर लाइफ इंक्लूडिंग योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। ये फिक्स होने के बाद प्ले होता है। प्ले समझते हैं ना, जीवन का रोल शुरू होता है, तो हम तो प्ले करते हैं एंड विदाउट चॉइस। जब पैदा होते हैं माता पिता भी सिलेक्ट नहीं करने का, यस और नो। जो डिसाइडेड होता है उसमें चॉइस होती है? नहीं होती है। भाई बहन नो चॉइस, रहने का घर नो चॉइस, पैदा होते ही धर्म मिलेगा नो चॉइस, यस और नो। पड़ोसी मिलेगा, गांव मिलेगा, कंट्री मिलेगा, कोई चॉइस है? नहीं है। जो डिसाइडेड है उसमें चॉइस कहां से होगा? अच्छा, मरने में चॉइस है? होगी नहीं है। न जन्म के समय है न मृत्यु के समय है। जीवन में भी चॉइस नहीं थी, राम को भी नहीं थी, वनवास जाना ही पड़ा। रावण सीता को उठा के ले गया, क्या चॉइस थी? कृष्ण भगवान को महाभारत करना ही पड़ा, क्या चॉइस थी?
प्रयास तो किया ना, राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया, भगवान महावीर ने भी कहा कि मेरे को दीक्षा लेना है, बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया। तो चॉइस कहाँ है किसी के पास, बताइए? न जन्म के समय है, न जीवन में है, न मृत्यु में है? So it is a control and governed by the law of nature as per our previous birth. That's it. उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, इसमें कोई पजल ही नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल सीक्वेंस। क्या बताया? इसमें कोई समझने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट की भी जरूरत, इट्स वेरी सिंपल। और हमेशा विज्ञान सिंपल होता है समझने के बाद, और ज्ञान और अज्ञान डिफिकल्ट होता है, ज्ञान अज्ञान दोनों, क्योंकि ज्ञान अज्ञान दोनों डूअरशिप के ऊपर डिपेंड है। विज्ञान नॉन डूअरशिप के ऊपर डिपेंड है, ज्ञान अज्ञान ओनरशिप के ऊपर डिपेंड है, विज्ञान नॉन ओनरशिप के ऊपर डिपेंड है। आप समझे ना? तो जब डूअरशिप एंड ओनरशिप है तो राजद्वेष तो होगा ही, और प्रयास भी होगा। जब आप डूअर ओनर नहीं है तो प्रयास की जरूरत भी, जो भी होता है, यू आर द ओनली ऑब्जर्वर, you are not sufferer, your body is sufferer, but you are observer, that's it। समझ में आया? फिर कोई टेंशन है ही नहीं, ऑब्जर्वर को कोई टेंशन नहीं होता है। और सफरर तो प्रकृति है। प्रकृति को सफरर क्यों है, वो प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, और इसीलिए उसको भुगतान क्यों है वो तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जैसा ही भुगतान खत्म हो गया, इसको जला दिया जाएगा, रोल खत्म। उनके पास पुरुषार्थ करने की फ्रीडम नहीं है, उनको तो रोल सफरिंग का है, सफरिंग खत्म हो गया, जला दो इसको। यानी उसको क्यों सफरिंग है वो प्रश्न होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सफरिंग के लिए है। समझ में आया? और वी आर द ऑब्जर्वर, मगर ऑब्जर्व के समय हमको मालूम होना चाहिए आई एम अ प्योर सोल, और जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं वो कुदरती रचना है। इसमें डिफिकल्टी कहाँ है? स्वामी जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये महसूस कैसे होगा? मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ ये महसूस कैसे होगा? अगर मैं शुद्धात्मा नहीं हूँ तो प्रकृति को महसूस कौन करेगा? प्रकृति करेगी? प्रकृति कर सकते, मुर्दा भी कर सकता है। मतलब जो चेतना हमारे अंदर है वही शुद्ध आत्मा। चेतना शुद्धात्मा है, मगर चेतना के ऊपर जो ज्ञान दर्शन है उसके आधार से वो फील करता है। अगर वो नहीं है चेतना तो ज्ञान दर्शन भी नहीं है, तो फीलिंग भी नहीं है, इसको डेड बॉडी कहते हैं। चेतन नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा, अज्ञान भी कैसे होगा, विज्ञान भी कैसे होगा? चेतन नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, विज्ञान भी नहीं है, सिर्फ मैकेनिकल पार्ट है। और मैकेनिकल पार्ट अकेला चेतन के बिना इनएक्टिव है, यानी इसको डेड बॉडी कहते हैं, इसकी कोई वैल्यू। तो तीन पार्ट है, एक चेतन है, एक मिश्र चेतन है, और एक मैकेनिकल चेतन है। ये बॉडी को मैकेनिकल चेतन कहते हैं, और प्रतिष्ठित आत्मा लाइव ईगो को मिश्र चेतन कहते हैं, तो तुमको पुरुषार्थ करना है। और मूल चेतन को शुद्ध चेतन कहते हैं। शुद्ध चेतन, मिश्र चेतन और मैकेनिकल चेतन। मैकेनिकल चेतन कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। मिश्र चेतन है डिपेंड ऑन योर करंट ज्ञान एंड दर्शन। और शुद्ध चेतन है वो तो अपने स्वभाव में ही है और स्वभाव में ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये तीनों है, थ्री फेसेस ऑफ योर फेस ऑफ योर लिविंग। आपके जीवन का हर समय थ्री फेसेस होता है, सोल भी होता है, लाइव ईगो भी होता है, और प्रकृति भी होती है हर अवस्था में। अकेला बॉडी नहीं है। स्वामी जी, नए कर्म भाव से बनते हैं, तो अभी हमें संयोग जब हो रहा है उस समय हम कैसे उसको अलग कर पाएंगे कि हमसे कुछ चार्ज हुआ या नहीं, नया भाव बना या नहीं? हमारा काम प्रकृति को कुदरती रचना देखकर शुद्ध आत्मा में रहना है। नया कर्म बन गया या नहीं बना उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। जहां विजन मिस हो गया क्रिएशन हो जाएगा, मगर हमको उसको देखना जानना नहीं। हमारा जब भी गलती, जब भी मालूम हुआ कि हमारा कुदरती रचना देखने की क्रम खत्म हो गया, बात शुरू कर दो। कितने टाइम खत्म हो गए, कितना टाइम लॉस हो गया, वो देखने की जरूरत नहीं है। अगर पीछे जाओगे तो वर्तमान खो बैठोगे।
आध्यात्म मार्ग वर्तमानता के ऊपर है, पास्ट और फ्यूचर के ऊपर नहीं है। दे क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर लाइफ एंड यू ऑलवेज लूज योर प्रेजेंट। व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, यू ऑलवेज लूज योर प्रेजेंट, और उसका नाम ही अज्ञानता है। वर्तमान में रहना है, कुछ भी हो गया है या कुछ भी होगा छोड़ दो, अभी क्या है, दैट्स माय प्रेजेंट। पहले क्या हुआ था, बाद में क्या होने वाला है, वो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है और किसी के भी हाथ में, तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जो होने वाला है वो होके ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है कुछ भी करोगे तो भी, और इसीलिए हमको सोचने की जरूरत। कुदरत क्या करती है देखते रहो, वी आर द ओनली ऑब्जर्वर, वी आर नॉट सफरर। Sufferer is body and I am not body. Now you understand? So it's a very simple science. और ये अनुभवी पुरुष होने के नाते ही इतना सिंपल है। अगर अनुभवी नहीं होती और किताबों का ज्ञान होता तो ये प्रेजेंटेशन ऐसा, आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बाद में 2-4 अवतार के बाद समझ में आएगा, यही बात करेंगे, क्योंकि अनुभव खुद को ही नहीं है तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा? When the persons have no experience, how they can explain the science? Because I have an experience, I have a vision 24 hours, so I can explain any kind of question in a simple way, because this is my own experience. It is not matter of किताब में क्या लिखा है, that is not my subject. ये दुनिया में नई किताब बनेगी और आप सबको भी इसमें सहयोग देना है। आप मराठी में कोई किताब लिखो, आई एम वेरी हैप्पी, यू कैन ट्रांसलेट, नो प्रॉब्लम। छोटी छोटी बातें 40, 50, 100 पन्ने की बनाओ और शेयर करो सबके सामने। यहाँ कोई ओनरशिप तो है नहीं, किसी की मालिकी तो है नहीं, और जो वहां लिखना है स्वामी कमलेश आनंद जी लेखक तो है नहीं, आई एम स्पीकर ओनली, मैंने किताब लिखी नहीं है, आप समझे? जो भी मैंने बोला है, यू कैन ट्रांसलेट एंड मेक अ वन बुक्स इन अ मराठी लैंग्वेज। तो मैं भी यहाँ के लोकल लोगों जिसको हिंदी नहीं समझ में आती है उसको समझ में आए, विज्ञान 50-100 पन्ने 200 पन्ने का कोई भी व्यक्ति मराठी में बना सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। किसी को परमिशन की जरूरत नहीं है, यू कैन मेक इट एंड शेयर इट, मगर नॉन कॉमर्शियल, बेचने का नहीं, बनाने का और बात नहीं, बेचने का नहीं कोई भी चीज। मुझे एक और सवाल था। यस, ये जो जागृति आपने कहा कि वर्तमान में जितना रहेंगे उतना हम ज्ञान को अप्लाई कर पाएंगे, तो ये जागृति बढ़ाने के लिए ध्यान सहायक है क्या? एप्लीकेशन, ध्यान की जरूरत नहीं है। when you are living in a present with मैं कौन हूँ और ये कौन कर रहा है, तो धीरे धीरे भीख और भय खलास हो जाएगा और अपने आप वर्तमान में रह पाओगे। ये भीख और भय के कारण हम वर्तमान में नहीं रह पाते। We are thinking about the past or future and we lose our present. क्योंकि because of fear या because of beggarship, आप समझे? अगर ये निकल जाएगा तो फिर प्रेजेंट में रहना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। भय होता है कल क्या होगा, कल क्या होगा, परसों उन्होंने ऐसा किया था आज भी करेंगे, फियर, या तो मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को ये हेल्प करेगा, आप समझे ना? तो ये भीख है, ये भी नहीं होना चाहिए, तभी आप वर्तमान में आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ डिसाइडेड है। क्या है? ये दुनिया किसी के विचारों से, किसी की बुद्धि से और किसी की ताकत से चलती नहीं है। ये दुनिया आपके पिछले अवतार के कर्मों के हिसाब से चलती है, और इसीलिए राम इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी जंगल में जाना ही पड़ा। इतना ज्ञानी होने के बाद भी मृग जल के पीछे दौड़े और रावण सीता जी को ले गए। यानी बुद्धि काम में नहीं आएगी, शक्ति काम में नहीं आएगी, आप समझे? कर्म की भुगतान का मतलब इट्स कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। यू हैव नो चॉइस, यू आर पावरफुल बट नो चॉइस। इन अ पार्ट ऑफ सफरिंग यू हैव नो चॉइस। इन अ ज्ञान दर्शन ऑफ कोर्स यू आर पावरफुल, हो सकते हैं हम उसमें क्वेश्चन, मगर सफरिंग के पार्ट में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, चाहे आप राम है, कृष्ण है या महावीर है। सफरिंग में चॉइस नहीं है। ज्ञान दर्शन में चॉइस है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, ज्ञान को रिमूव कर सके, इरेज करके, डिस्ट्रॉय करके
आप आपके ज्ञान दर्शन बढ़ा सकते हैं, मगर मन वचन काया की अवस्था को परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसीलिए उसमें डीप में जाने की जरूरत भी, सिर्फ कुदरती रचना देखो, आप समझे, तो आप ये ज्ञान दर्शन में स्थिर रह सकेंगे। बिकॉज एट दैट टाइम यू आर द ओनली ऑब्जर्वर। जब डूअर होते, सफरर होते, तो हम डिस्टर्ब हो जाते। जब डूअर नहीं है, सफरर नहीं है, हम तो ऑब्जर्वर हैं, तकलीफ क्या है हमको? जो भी दिखता है वो कुदरती रचना, और मैं खुद शुद्ध आत्मा। इसमें कोई ज्यादा कोई प्रयोग की जरूरत, आवश्यकता नहीं है, और कोई फॉर्मेट की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया? ओके, यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સ્વામીજી, શ્રીમદ રાજચંદ્રજી એમ કહે છે કર વિચાર તો કામ. એક બાજુ આપ કહો છો કઈ કરવાનું જ નથી, જોવાનું ને જાણવાનું છે. એ કહે છે કર કરશે તો કામ છે, આપ કહો છો કઈ કરવાનું જ નથી, તો જરા સમજો. એમને વિચાર કરવાનું કીધું, ક્રિયા કરવાનું ના કીધું. વિચાર કરવાનું કહ્યું ને, આપ તો વિચાર કરવાનું ક્યાં કહો, આપ તો જાણવાનું જોવાનું જ. એટલે જોવા જાણવાનું છે, એની અંદર જે લાઈવ મન છે એની અંદર વિચાર હોય, અને જે ડિસ્ચાર્જ મન છે એમાં વિચાર ના હોય, એમાં વિચાર ઉકલતા હોય, વિટેલા ઉકલે એમાં કશું ના કરવાનું હોય. પણ જે પ્રોસેસ કરીએ છીએ આપણે પુરુષાર્થની, એ લાઈવ મન હોય એમાં તો વિચાર હોય ને. સમજાવું નથી. લાઈવ મનની અંદર જીવતું મન છે, એની અંદર ધર્મની અંદર બે પ્રકારના મન છે, દ્રવ્ય મન ને ભાવ મન. યસ કે નો? એનો મીનિંગ કહી દો એક એક વાક્યમાં. ભાવ કરવાનું હોય, સત્તા આપણી પાસે જે ભાવ કરી શકીએ છીએ. એટલે ભાવ મન થયું ને, તેમાં વિચાર ના આયા? હા. હા, તો પછી પ્રશ્ન કેમ પૂછો છો? ભાવ મન નો મતલબ આપણે વિચાર કરવાનો, દ્રવ્ય મન નો મતલબ જે કરેલા છે એ ઉકલે છે. દ્રવ્ય એટલે વીટાયેલું ઉકલે છે, ભાવ એટલે આજે વીટો છો પુરુષાર્થ કરીને, નેક્સ્ટ બર્થમાં ઉકલશે. આજનું ભાવ મન, નેક્સ્ટ બર્થમાં દ્રવ્ય મન. આજનું ચાર, નેક્સ્ટ બર્થમાં ડિસ્ચાર્જ. એટલે શ્રીમદ રાજચંદ્રજી શું કહે છે કે તું હમણાં વિચાર કર, પછી તને કામ છે. ભાવ મન માટે કીધું, ભાવ મન. હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોણા સંબંધે વર્ગણા એ રાખું કે એ પરહરું, એનો વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે મેં કર્યા, તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંત તત્વ અનુભવ્યા. રે આત્મતારો શીઘ્ર એને ઓળખો, સર્વાત્મમાં સમદ્રષ્ટિ દો, આ વચનને હૃદયે ધરો. યસ કે નો? યસ. એટલે કે તત્વજ્ઞાનની બાબતમાં વિચારો, જીવન સંસારની બાબતમાં વિચારવાની જરૂર નથી. એ તો લઈને આયા છો. સંસારની બાબતમાં નહીં વિચારો, તત્વજ્ઞાનની બાબતમાં વિચારો. હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, આ બધું શું છે અને કોણ ચલાવે છે, એ મારું છે કે એનાથી મારે છૂટા રહેવાનું છે, રાખવું કે પરહરું. પરહરું એટલે એને ભળી જવું કે છૂટા રાખવું. એનો વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે મેં કર્યા, તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંત તત્વનું. તો મને ખબર પડી કે આ શરીર જ હું નથી, પછી રાખવા ના રાખવાનો પ્રશ્ન ક્યાં આવ્યો? જે કઈ સંજોગો, સંબંધો, સત્તા, સંપત્તિ શરીર સાથે છે, પણ હું શરીર જ નથી, તો પછી આ બધું મારું થયું? માટે હું તો શુદ્ધ આત્મા છું. તો આ બધું શું છે? કુદરતી રચના. વિચાર કરે તો ખબર પડે ને. એના માટે કીધું કર વિચાર તો પામે છે. એના માટે સિદ્ધાંત તત્વને સમજવા માટે, આ મન વચન કાયાની અવસ્થાઓને સમજવા માટે નહીં. સમજાય છે? મન વચન કાયા અને તેની અવસ્થાઓ કોણ ચલાવે છે, કઈ રીતે ચાલે છે, એના માટે. સમજાય છે? કુદરતી કઈ રીતે ચાલે છે, વ્યક્તિ સાથેના શું હિસાબો છો, એની કોઈ વેલ્યુ નથી. આને મને અપમાન આપ્યું, માન આપ્યું, આ મારું છે, આ તારું છે, આ મેં કર્યું, તે કર્યું, એની કોઈ વેલ્યુ ને એના ઉપર વિચાર કરવાની જરૂર નથી.
પણ આખું જીવન જે છે લાઈફ એ કોણ ચલાવે છે? તો કે કુદરત ચલાવે છે. પછી લાઈફની અવસ્થાઓ માટે વિચારવાની જરૂર નથી. આ મન વચન કાયા કોણ ચલાવે છે? કુદરત ચલાવે છે. તો પછી એને વિચારવાની જરૂર નથી, બસ કુદરતી રચના જોયા કરો. વિચાર આવે તોય કુદરતી રચના, વાણી આવે તોય કુદરતી રચના, વર્તન કરીએ તોય કુદરતી રચના. આને સમજવા માટે વિચારવું પડે. પહેલા શું કીધું? સમજવા માટે વિચાર. આ વિજ્ઞાનને સમજવા માટે વિચારવાનું છે. મન વચન કાયા શું કરવું શું ના કરવું એના માટે વિચારવાનું નથી. સમજાય છે? આ જેટલા વિજ્ઞાનીઓ વિજ્ઞાનને બહાર પાડે છે, તો પહેલા વિજ્ઞાન માટે વિચાર તો કરે છે ને કે આ કેવી રીતે શું હા, તો એટલે તો કીધું મેં તમને, વિજ્ઞાન માટે વિચાર કરવાનો છે. મન વચન કાયાની અવસ્થા માટે વિચાર કરવાનો નથી. એ તો કુદરતી રચના છે. ખ્યાલ આવ્યો? મારે કેમ જીવવું, કેમ ખાવું, કેમ પીવું, કેમ સૂવું એ માટે વિચારવાની જરૂર નથી. કુદરત સંજોગ આપશે એ પ્રમાણે તમારે જીવવાનું છે. સમજાય છે? કોઈ કે મને બાળપણ બહુ ગમે છે તોય પણ એનો એન્ડ આવે જ, કારણ કે કુદરતી રચના. કોઈ કે યુવાની ગમે છે તોય એન્ડ આવે, કારણ કે આપણા હાથમાં જે આપણા હાથમાં નથી એના માટે વિચારવાની જરૂર. પણ આપણા હાથમાં શું છે? આ બધી અવસ્થાઓ કઈ રીતે ચાલી રહી છે એનું વિજ્ઞાન જાણવું. હું કોણ છું એનું વિજ્ઞાન જાણવું. વિજ્ઞાન એટલે સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન અને વ્યવહાર એટલે સામાજિક જ્ઞાન, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ. વિજ્ઞાન એટલે કે સનાતન સિદ્ધાંતો, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ, યુનિવર્સલ ટ્રુથ. અને વ્યવહાર એટલે રિલેટિવ ટ્રુથ, સોશિયલ ટ્રુથ, ધાર્મિક સત્ય, સામાજિક સત્ય. આધ્યાત્મિક એટલે સનાતન સત્ય. બીજું એક પ્રશ્ન એમ છે કે આપણે કર્મિક માર્ગમાં એમ શીખ્યા છે કે અષ્ટમી, ચતુર્દશી અથવા કઈ પર્વના દિવસે આ નહીં કરવું, તે નહીં કરવું, લીલોતરી નહીં ખાવાનું. આમાં સાયન્સ શું છે? એ પ્રકૃતિ માટે સારું છે. પ્રકૃતિ 5 મહાવ્રત માટે સારું છે. જીવ હિંસા ઓછી થાય, ભાવ સારા બને, એના માટે સારું છે. સત્ય, અહિંસા, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય ને અપરિગ્રહ, આ બધું એનાથી પળાય, આ નીતિ નિયમોથી. પણ એ 5 પાળવાના આના માટે નહીં. અને એકે મહાવ્રતની જરૂર નથી. ના સમજ્યા? આના માટે છે. ચાલે. કોઈ વ્યક્તિને એમ લાગતું હોય કે મારે સંસારમાં રહી અને આ વિજ્ઞાન નથી સમજવું, એના કરતા સંસાર માણવો નથી, તો મારી પાસે સમય મળે તો મારે વિજ્ઞાન સમજવું છે. એટલે સંસાર ખોટો છે એવું સાબિત થતું તારી કેપેસિટી નથી. બાકી રામકૃષ્ણ બધા ભણેલા જ હતા ને, બોલતા નથી. એ કુંવારા હતા તો પછી એટલે પણ તારી કેપેસિટી ના હોય ના ભણવું તો તારો વ્યક્તિગત વિષય છે. એને સનાતન સત્ય ના કહેવાય. એ સબ્જેક્ટ ટુ યોર ઇન્ડિવિડ્યુઆલિટી. ઇટ્સ નોટ લો ઓફ નેચર. કે ભણવાથી જ વિજ્ઞાન સમજાય કે ના ભણવાથી સમજાય એવું જરૂરી. વિજ્ઞાન એ દ્રષ્ટિનો વિષય છે. વિજ્ઞાનને લાઈફ કેમ જીવવી, બહારની લાઈફ, એ વિષય એ તમારા વ્યક્તિગત ઇન્ટરેસ્ટ છે. સમજાય છે? મારી વાત સમજાય છે? જયારે મન વચન કાયની બધી અવસ્થા કુદરતી રચના જોવાની છે, પછી કુંવારા હોય કે પરણેલા હોય શું ફેર પડે છે? કુદરતી રચના છે તો પછી બોજો સારો આપણને જે છે આપણા હાથમાં પણ નથી. સમજાય ને? આ બધી સામાજિક અને ધાર્મિક વાતો છે. ડુઅરશિપ ના બેઝ ઉપર, ફોર ગુડ લાઈફ, સારું જીવન જીવવા માટે છે. અને આ વિજ્ઞાન જન્મ મરણથી મુક્ત થવા, બંનેના એંગલ જુદા છે. પેલું સારું જીવન જીવવા માટે છે 5 મહાવ્રત, અને વિજ્ઞાન જન્મ મરણથી મુક્ત. બંનેના એંગલ કેવા છે? જુદા છે. એટલે બંનેમાંથી કશું ખોટું નથી. જેને સારું જીવન જીવવું છે એને ધર્મને ફોલો કરે, 5 મહાવ્રત પાળે, એમાં કશું ખોટું નથી. અને જેને મોક્ષે જવું હોય એને આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન સમજવું પડશે. બસ. સમજાય? બીજું પૂછવું છે કઈ? ઓકે, જય સચિદાનંદ. महाराष्ट्र में कुर्सी की बहुत कीमत है। महाराष्ट्र में कुर्सी का बहुत महत्व है। इसलिए तो मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, कोई खींचे ही नहीं।
यस प्लीज, जैसे आपको आगे आना पड़ेगा, वो एको आता है ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ द 10 फीट डिस्टेंस। आप यहाँ जाइए प्लीज, अभी सबके लिए स्टैंडर्ड जगह होगी क्वेश्चन करने के लिए। या जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद प्रभु। स्वामी जी, मन वचन काया के बारे में थोड़ा, पुरुषार्थ के बारे में बात करनी। तो बोलिए। अनंत जन्मों से हम लोग मनुष्य देह के लिए बहुत जन्मों, अनंत जन्मों के बाद में मिला है मनुष्य देह। यस। और एक इंद्रिय बने, 2 इंद्रिय बने, 3 इंद्रिय, 5 इंद्रिय बने, फिर पास करने के बाद मनुष्य को मिला, अनंत भोग के बाद में मिला। मनुष्य देह का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। यस यस। तो अभी ये भी कहते हैं कि इसी देह से हम लोग मोक्ष जाएंगे। तो अभी ये इसी मनुष्य देह से ही मोक्ष मिलेगा, या मनुष्य भाव से ही मुक्ति है। यस। तो मनुष्य देह का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। यस। तो ये पुरुषार्थ में इससे कोई संबंध क्यों नहीं है इसके साथ में? क्योंकि बिना मन वचन काया पुरुषार्थ कैसे करेगा इंसान? अगर मन वचन काया ही नहीं रहेगा, पुरुषार्थ कैसे करेगा? कैसे पॉसिबल है, मतलब लॉजिकली? मन वचन काया नहीं होने से पुरुषार्थ कैसे करेगा, मतलब समझा नहीं। मतलब हम लोग को तो मन वचन काया कुदरती रचना है। यस। पुरुषार्थ नहीं है इसमें। वो कुदरती रचना देखता है, वही तो पुरुषार्थ है। और मैं करता हूँ, मेरा है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान पुरुषार्थ है। तो राग द्वेष होगा तो कर्म बनेगा। कुदरती रचना देखोगे, राग द्वेष नहीं होगा तो कर्म नहीं बनेगा, ये भी तो पुरुषार्थ है। कुदरती रचना देखना वो भी पुरुषार्थ है, और क्रिया को कर्ता मानना वो भी पुरुषार्थ है, वो अज्ञान पुरुषार्थ है। अज्ञान से राग द्वेष होगा और विज्ञान से राग द्वेष नहीं होगा। पुरुषार्थ में मन वचन काया का कोई रोल नहीं है। पुरुषार्थ में मन वचन काया का रोल नहीं है, पुरुषार्थ में ज्ञान दर्शन का रोल है। अज्ञानी को भी ज्ञान दर्शन से ही पुरुषार्थ होता है, ज्ञानी को भी ज्ञान दर्शन से ही पुरुषार्थ होता है, और विज्ञानी को भी ज्ञान दर्शन से ही पुरुषार्थ होता है। मगर अज्ञानी मानते हैं कि क्रिया को पुरुषार्थ मानता हूं, ये उनका अज्ञान है। मगर पुरुषार्थ तो ज्ञान से ही करता है, ज्ञान दर्शन से ही करता है। आप समझे? मैं राग द्वेष क्यों करूंगा? क्योंकि मैं क्रिया को, वस्तु को कर्ता और मालिक ही मानता हूं। तो मेरी दृष्टि में गलती है तो राग द्वेष होगा ही। मेरी दृष्टि में मालूम है कि ये पाप है और मैंने गलत किया है, ऐसा मैं मानूंगा तो प्रायश्चित तो करूंगा, मगर ये ज्ञान है। मगर जब विज्ञान आएगा तो कहेगा तुम कोई भी क्रिया के कर्ता भी नहीं हो, मालिक भी नहीं हो, तो फिर राग द्वेष करने की क्या जरूरत है? जो भी होता है यू आर द ओनली ऑब्जर्वर। जो भी होता है वो कुदरती रचना है, वो कुदरती रचना को देखते जाओ। यू आर द ओनली विटनेस, यू आर नॉट डूअर, यू आर द ऑब्जर्वर with the help of light of the soul। आत्मा के ज्ञान प्रकाश में प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति को देखती जाए तो ये कुदरती रहता है, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो लक्ष्य रखे, खत्म हो गई बात। इसमें और ज्यादा पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है बताइए? नहीं है। कोई कहेगा, कोई किसी को भी पूछो कि भी मैं कुदरती रचना देख के शुद्धात्मा में रहता हूँ तो मेरे को राग द्वेष नहीं होता है, तो क्या उससे और कोई ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है? तो कहेगा नहीं है, क्योंकि राग द्वेष नहीं करना वही तो वितरागता है, इससे आगे कहां बढ़ना है? तो फिर आप समझे ना? लोगों को आसान बात समझने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, और डिफिकल्ट वाली बात आसानी समझ जाते हैं। आप समझे? एक व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी मानो कि आत्मा को तो मैं मानता हूं, मगर आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? न मेरे को दिखता है, न मेरे को अनुभव है, सिर्फ मानता हूं, तो कैसे आगे बढ़ेगा? मैंने बोला वही तो प्रश्न मैं करता हूं, जब शादी करते तो बीबी को जान से नहीं मानते, फिर स्वीकार क्यों करते हो? बोलते नहीं है, अच्छा भी करते हैं ना कि जो भी होगा हो देख लेंगे, दोनों ये मानते हैं ना। अभी सोचेंगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो भी कर सकते शादी। आप समझे कि नहीं? शादी के समय तो हम नहीं सोचते हैं कि कल क्या होगा, सोचते हैं तो फिर। और हमारे परिवार में भी लोगों को देखते हैं हम कि वो कितना आनंद उठाते हैं, फिर भी हम करते हैं, तो ऐसी बात है। तो ये उसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। यू हैव टू पुट इन अ प्रैक्टिस एंड do the separation of relative and real,
All the relatives is कुदरती रचना and real is I am. That's it. ये दुनिया के अंदर धर्म गुरुओं ने उधर ट्रेंड चलाया, क्रिया के माध्यम से, पाप पुण्य के माध्यम से ट्रेंड उधर गलत चलाया। ये कहा तुम पुण्य करोगे तो ही अच्छी लाइफ मिलेगी शरीर से, पाप करोगे तो बुरी लाइफ मिलेगी। क्या बताया? मन से अच्छे विचार करो, जबान से अच्छी वाणी बोलो और व्यवहार अच्छा करो, तभी आपको अच्छा लाइफ मिलेगा, या तो मुक्ति की ओर आगे जाएंगे, जो भी कहेंगे। और मैं कहता हूं कि ये सब कुछ होता है क्योंकि मैं हूं, बोलते नहीं है। उनके आधार से मैं नहीं हूं, मेरे आधार से ये है। यस और नो? तो यहां तो मेरी वैल्यू ही नहीं है। विचार अच्छे करो, जबान अच्छी बोलो, क्रिया अच्छी करो, यहां मैं तो आता ही नहीं हूं। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है। भी मैं हूं तो शरीर है, कि शरीर है तो मैं हूं? नहीं, मैं हूं तो शरीर। और वैल्यू किस करते हैं? हम लोग शरीर की करते हैं। भी आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? नहीं होगी। मुक्ति की ओर आगे कैसे चल आओगे? नहीं होगी। अज्ञान कैसे कटेगा? यही तो बात है। ट्रेंड गलत हो गया। तो पहले भी हमारे जो महात्मा थे वो क्या मानते थे? ये गलत प्रेजेंटेशन हो गया और इसका अंडरस्टैंडिंग गलत हो गया। हालांकि कहने वाले की सोच गलत नहीं थी, मगर लोग इसको समझ नहीं पाए क्योंकि दे आर नॉट डेवलप पीपल। तो ज्ञानी पुरुष ने कहा कि तुम चंदूलाल हो और तुम्हारे अंदर, और इसीलिए सभी में देखो हाँ कि ये प्रकृति है, इसके अंदर परमात्मा है। तो प्रकृति के आधार से परमात्मा ये सेकेंडरी हो गया। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मैंने ट्रेंड बदल दिया। दिस इज नॉट करेक्ट विजन। ऐसा कहो मैं शुद्धात्मा हूं और प्रकृति या चंदूलाल वो कुदरत ने कर्मों की भुगतान का साधन दिया है, और जब कर्म खत्म हो जाएगा चंदूलाल को जला दिया जाएगा। बट आई एम ऑलवेज। यस और नो? तो मैं चंदूलाल हूं, चंदूलाल के अंदर हूं, ऐसा है? बिकॉज आई एम चंदूलाल इज देयर। अगर मैं नहीं हूं, चंदूलाल ही नहीं है। नहीं समझ में आया? तो गलत हो गया प्रेजेंटेशन। क्या हो गया? इंटेंशन गलत नहीं था, प्रेजेंटेशन गलत हो गया, और बाद में लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं कहो, मैं शुद्धात्मा हूँ और ये शरीर कर्मों की भुगतान का साधन है, और जैसा कर्म खत्म हो जाएगा साधन को जला दिया जाएगा, पर मैं तो वही का वही रहूंगा। So because I am, शरीर रहे या ना रहे मैं तो हूँ ही। अगर मैं नहीं होऊंगा तो रिबर्थ कैसे होगा? इनका तो नहीं होता है। समझ में आया? तो दृष्टि की बात है, आर्ट ऑफ विजन। स्वामी जी अभी प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे मैंने ये हाथ ऊपर उठाया, ये कौन उठाया हाथ? ऐसा मतलब कंफ्यूज होता है कि भाई कौन उठाया? प्रकृति ने उठाया। मतलब मैं सोचा तो उठा हो, तो ऐसा फिर सोचा भी प्रकृति ने। अच्छा, प्रकृति ने सोचा तो किसने सोचा? सही बात है, आत्मा नहीं सोच सकता है। एक भी कहता है मैंने शादी किया तो पत्नी लेकर आए और इसीलिए मैं पति हूं। मैंने बोला नहीं, पत्नी मिली है इसीलिए पति। अगर नहीं मिले तो पति नहीं हो। तो आप समझ में आया क्या? कर्म इज डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। इसमें किसी की स्वतंत्रता नहीं है, वो डिपेंड है। वो मानते हैं कि मैंने किया, मगर ऐसा है तो ऐसा हमको जो लगता है वो भ्रम है, पूरा भ्रांति है। बहुत बड़ी भ्रांति। हम विदेश में जाते हैं तो बच्चे लोग टीनेजर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं? स्वामी दिस इज माय पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ लाइफ पर्सनल होती है, लाइफ पर्सनल होती है किसी की? ये लाइफ तुम्हारी माता पिता के साथ जुड़ी है, भाई बहन के साथ जुड़ी है, पति पत्नी के साथ जुड़ी है, परिवार के साथ जुड़ी है, समाज के साथ जुड़ी है, फ्रेंड्स रिलेटिव नेबर के साथ जुड़ी है। फिर तुम कहते हो पर्सनल लाइफ है? पर्सनल हो सकती है? नहीं। कोई किसी व्यक्ति की लाइफ पर्सनल नहीं हो सकती है, डिपेंड ऑन हिज कर्म। समझ में आया? दृष्टि पर्सनल हो सकती है, जीवन पर्सनल नहीं होता। तो लोगों की सोच नहीं है ना, बोलते तो है, समझ नहीं है ना। कभी किसी की बाह्य लाइफ मन वचन काया पर्सनल नहीं हो सकता है। पुरुषार्थ पर्सनल हो सकता है क्योंकि वो अंदर की बात है, बाहर की बात हमारे ऊपर अधीन नहीं है। आप समझिए? हाँ जी, अब ये मन में समझ में आ गया कि भाव मन है और डिस्चार्ज मन है, द्रव्य मन भाव। तो और ये भी बुद्धि कैसे रहती है? मतलब जो हम लोग सोचते हैं बुद्धि, वो सिर्फ डिस्चार्ज रहती है बुद्धि? दोनों रहेगी ना। अच्छा, दोनों रहेगी, उसमें भी दोनों। डिस्चार्ज बुद्धि वो डिस्चार्ज के लिए काम करेगी, जीवन जीने के लिए काम करेगी, वो ऑटो मोड है। हाँ जी,
और चार्ज बुद्धि है वो आपके ज्ञान दर्शन को समझने के लिए हेल्प करेगी, नया कर्म बनाने के लिए, भाव करने के लिए, इंटेंशन के लिए, गोल ऑफ द लाइफ के लिए वो हेल्प करेगी। चित्त भी दो है। हाँ, डिस्चार्ज चित्त और चार्ज चित्त। डिस्चार्ज मतलब ऑटो मोड, चार्ज का मतलब पुरुषार्थ वाला ज्ञान दर्शन, चित्त मतलब ज्ञान दर्शन। एक पुरुषार्थ वाला ज्ञान दर्शन है जिसके आधार से आप पुरुषार्थ करते हैं फॉर फ्यूचर्स, और दूसरा डिस्चार्ज वाला है जिसके आधार से अवस्था समझ में आती है, ये मेरे माता है, पिता है, भाई बहन है, पति है, पत्नी है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरा बुरा है, ये सब जो ज्ञान दर्शन है वो डिस्चार्ज है। सब्जेक्ट टू सर्कमस्टांसेस इज अ डिस्चार्ज ज्ञान दर्शन। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार तीनों डिस्चार्ज भी है, चारों डिस्चार्ज भी है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार लाइव भी है। आज का लाइव नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज, आज का चार्ज नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगा। इसमें कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन है जो पता चले आपको ये कौन, जो मन वचन काया और अवस्था के साथ जुड़ा है सब डिस्चार्ज है, और इसके ऊपर जो सोचता है अपने वर्तमान और फ्यूचर्स नहीं, क्या आध्यात्मिक बात नहीं है, कोई प्रकार की भविष्य की बात होता है, पर फ्यूचर इट इज नॉट कनेक्टेड विद दिस लाइफ। अच्छा, जिस कोई व्यक्ति ने शादी कर लिया, 50 साल हो गए, फिर बाद में सोचता है कि नहीं ऐसी वाइफ होनी चाहिए, कैसा हस्बैंड होना चाहिए, तो किसके लिए सोचते हैं? इस वाइफ इस वर्ग के लिए बस तो पुरुषार्थ है। आज मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और मैंने प्रैक्टिस कर दिया और मैं लाख रुपया महीने कमाता हूँ, और मेरा मित्र डॉक्टर बन गया, वो मेरे साथ पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में, मगर आगे जाके उन्होंने डॉक्टरी ले लिया, वो डॉक्टर बन गया, अभी हर महीने 10 लाख कमाता है। तो मैं 5-10 साल के लिए सोचूंगा अगर मैंने भी डॉक्टरी किया तो अच्छा था, मगर वो फॉर नेक्स्ट यस। जो मन वचन काया कनेक्टेड विद दिस लाइफ इज टू बी कॉल्ड डिस्चार्ज। जो मन वचन काया का यूज करते हो नॉट फॉर दिस लाइफ, इट इज फॉर फ्यूचर, फॉर द नेक्स्ट बर्थ टू, ये चार्ज है। अभी हम लोग व्यवहारिक लाइफ में जो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं वो तो डिस्चार्ज है। अच्छा, डिस्चार्ज है। इस लाइफ के साथ जुड़ा हुआ कोई भी प्लानिंग आज का है या 50 साल के बाद का है, मगर वो डिस्चार्ज है। मैं कहूंगा कि मैं ग्रेजुएट हो गया, पैसा कमाऊंगा, फिर बंगला लूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर ये करूंगा, वो करूंगा, सब डिस्चार्ज है। सब्जेक्ट टू दिस लाइफ, सब्जेक्ट टू दिस वर्क इज डिस्चार्ज। समझ गया? लाइन ऑफ डिमार्केशन जो ये लाइफ के साथ जुड़ा नहीं है, से मेरे को जो वो मैं नया कोर्स डाल रहा हूँ तो वो चार्ज हो गया। इस लाइफ के साथ कनेक्शन, मैं यहाँ रहता हूँ फिर कहूंगा यहाँ से अच्छा मैं अमेरिका में पैदा हुआ तो बहुत अच्छा था, अभी क्या करूँगी? ये बर्थ के लिए नहीं, अगले नेक्स्ट बर्थ के लिए तो वो चार्ज है। समझ में आया? जो वस्तु प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल नहीं है विद दिस लाइफ वो सब चार्ज है। जो इस वर्क के लिए करते हैं चाहे रिजल्ट आए या न भी आए, मगर आपकी विचारधारा इस लाइफ के साथ जुड़ी है। जैसे मैं कहूँगा पहले मैं बड़ा होकर बंगला लूंगा, बड़ा महल जैसा, फिर मैं लूं या ना लूं, मगर डिस्चार्ज है। लूं तो भी डिस्चार्ज, नहीं लूं तो भी डिस्चार्ज, और विचार आए वो भी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब कुदरती। समझ में आया? समझ में आया। ओपिनियन चार्ज डिस्चार्ज हुए नहीं, ओपिनियन है, प्रकृति तो ओपिनियन तो करेंगे ना। प्रकृति से क्या जुड़ जाओगे तो चार्ज हो जाएगा। प्रकृति के साथ जुड़ना वही तो अज्ञानता है। प्रकृति में ओपिनियन रहेगा वो तो रहेगा, वो तो डिस्चार्ज लेकर आया तो ओपिनियन नहीं रहेगा। ये मेरे फादर मदर ओपिनियन तो है, इट्स अ व्यू पॉइंट, इट्स अ बिलीफ, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज अ इंडिविजुअल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको विज्ञान बोलते हैं, ये तो रिलेटिव ट्रूथ है, और रिलेटिव ट्रूथ हमेशा टेम्पररी होता है और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा तो परमानेंट है, वो विजन है। और अभी ओपिनियन है वो तो डिस्चार्ज में रहेगा ना, ये अच्छा है बुरा है, लाइक एंड डिसलाइक सब रहेगा। और उसको विजन से चार्ज, उसको कुदरत देखो तो मुक्त रहोगे, इसको राग से देखोगे तो नया चार्ज होगा। When you connect with the discharge part of man vachan kaya, they create the new cause. When you are the observer of your mind speech and action, you are not create the new cause. मगर आपने जो पुरुषार्थ किया कुदरती रचना देखने का और शुद्धात्मा में रहने का, उसका फल मिलेगा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक सहयोग, क्योंकि वो तो पुरुषार्थ है ना, स्वभाव नहीं है। स्वभाव का रिजल्ट नहीं आता है, लास्ट बर्थ में स्वभाव होता है, इसीलिए फिर रिजल्ट नहीं आएगा।
मगर जब तक पुरुषार्थ करोगे, विज्ञान का भी उपयोग करेंगे, वो पुरुषार्थ ही है, पुरुषार्थ का भी फल आएगा। मगर आपका पुरुषार्थ नॉट सब्जेक्ट टू मन वचन काया, सब्जेक्ट टू सेपरेशन है, और इसीलिए आपको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग मिलेंगे। सो पुरुषार्थ भी एक प्रकार का कॉज है। जोर से बोलो, या तो फिर जोर से बोलो कोई बात नहीं। એટલે આપણે જે પુરુષાર્થ કહીએ છીએ કે એનો પણ ફળ આવે, તો પુરુષાર્થ એ પણ એક પ્રકારનો ભાવ છે કે એનો એ પણ કોઝ છે? કોઝ, પુરુષાર્થ એટલે જ કોઝ, પુરુષાર્થ એટલે ભાવ, પુરુષાર્થ એટલે ઇન્ટેન્શન. આપણે જે દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ પુરુષાર્થ છે. એ ભાવ કેવી રીતે થયો? ડિપેન્ડ ઓન યોર જ્ઞાન દર્શન એટ ધેટ ટાઈમ. એ વખતે તમારું જ્ઞાન દર્શન જેવું છે એવો તમારો પુરુષાર્થ થશે. જ્ઞાન દર્શન સત્તામાં શું છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, જે સમયે જે ઉપયોગ કરો છો એના આધારે કોઝ બને છે. મારી પાસે જ્ઞાન હોય હું ઉપયોગ ના કરું તો પછી જે પ્રમાણે જે જ્ઞાનનો ઉપયોગ છે એ પ્રમાણે મને કોઝ બનશે. એટલે એમાં ક્વેશ્ચન એવી રીતે થાય છે કે આપણે જ્યારે દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો આપણને ભાવ શમી જાય છે, કારણ કે આપણને એક્સપેક્ટેશન નથી કે આવું હોવું જોઈએ કે આવું ના હોવું જોઈએ, જે છે કુદરતી રચના છે, રાઈટ? તો એ પછી નવો કોઝ કેવી રીતે ક્રિએટ કરે છે એ જરા સમજવું છે. નવો કોઝ, see how we can create a new cause for the next person. You listen the scientific process one time, okay, with attention. Actually, in any circumstances of your mind, speech and action, at that time, what is your Gyan Darshan says of these circumstances of your mind, speech and action? જેવું તમારું જ્ઞાન દર્શન કામ કરે છે એ કામથી એ જ્ઞાન દર્શનને આધારે intention create થાય છે. What is your intent at the time of action? Action is outside and intention is inside. As per the intention, your live or active man, buddhi, chit, ahankar, they do the process of your intention. Process of your intention. So the processing, mind, speech and action is a processing factory of a new cause. Processing factory. मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो फ्रेश है उसमें प्रोसेस होता है आपका इंटेंशन विद द हेल्प ऑफ योर ज्ञान दर्शन, करंट ज्ञान दर्शन. और उसका प्रोडक्शन क्या आता है? स्पीच और एक्शन. सो नेक्स्ट बस में जो आपका प्रोसेसिंग फैक्टरी है चार्ज, वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज. और स्पीच और एक्शन का संजोग कौन देगा? कुदरत देगा. और ये तीनों के लिए बॉडी कौन देगा? वो भी कुदरत देगा. संजोग भी कुदरत देगा और बॉडी भी. और आपका जो अंतस्करण है चार्ज, नेक्स्ट बस में क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज. और स्पीच और एक्शन का संजोग कौन देंगे? कुदरत देंगे. नाउ यू अंडरस्टैंड cause and effect, the cycle of reincarnation. Correct. Yes. So question is, આપણે જ્યારે દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે આ કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ ની સાયકલ બ્રેક કરવા માટે કરીએ છીએ, એટલે કે દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરવાથી નવા ભાવ ચાર્જ ના થાય એના માટે કરીએ છીએ, બરોબર? Yes. તો આજે આપણે કહીએ છીએ કે દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરવો એ પુરુષાર્થ છે અને પુરુષાર્થ એ જ ભાવ છે. Yes. તો એ કેવી રીતે કનેક્ટ થાય છે? બે પ્રકારના ભાવ. એક પ્રકારનો ભાવ જે ક્રિએટ ધ સંસાર અને બીજા પ્રકારનો ભાવ જે ડિસ્ટ્રોય યોર સંસાર. As per they destroy your ignorance. Yes. એક ભાવ અજ્ઞાન નાશ કરવાનો છે, તેનાથી ડેવલપમેન્ટ થાય છે અને મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક મળે છે. અને અજ્ઞાનને કારણે હું સંસારને લાયક અને સહાયક કર્મ બધું છું, રાગ, દ્વેષ, પાપ અને પુણ્યના ને પ્રમાણે રિઝલ્ટ આપે છે. પેલામાં સેપરેશન અપગ્રેડ થાય છે અને પેલામાં ડોઅરશિપ, ઓનરશિપ પાવરફુલ થાય છે. આ અજ્ઞાન છે, પેલું વિજ્ઞાન છે. આ રિલેટિવ સત્ય છે, પેલું યુનિવર્સલ ટ્રુથ છે. This is your choice. એટલે દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરીએ એટલે ઓટોમેટિકલી મોક્ષ માર્ગને લાયક ને સહાયક સંજોગો પ્રાપ્ત થાય એવો ભાવ થઈ જાય છે આપણા. Yeah, when you use the science as I am a pure soul and whatever is happened through the mind, speech, action is a kudrati rachana or but natural. So you are not create the new cause of rag and dvesha. At that time you create the moksha marg mate layak and sahayak because of your purusharth is not subject to
good and bad, like and dislike. Correct? છૂટા That's it. That's it. But still it is Purusharth, so nature will give you the result in the next birth. આજનો પુરુષાર્થ નેક્સ્ટ બર્થનું રિઝલ્ટ. હું એક્ઝામ્પલ જો આપું તમને ખ્યાલ આવે. જેમ અત્યારે અમને આ જ્ઞાન દર્શન સહજ રહે છે. ગુજરાતીમાં હા, અત્યારે અમને આ જ્ઞાન દર્શન સહજ રહે છે. કેવું રહે છે? સહજ રહે છે. આ અમારો પુરુષાર્થ નથી, આ લઈને આવ્યા છે. હવે જ્યાં કાચા પડીએ ત્યાં અમારે પુરુષાર્થ કરવો પડે. કરી રહ્યા છે એટલે અમને રેડીમેડ આવે છે. પુરુષાર્થ પણ રેડીમેડ આવે છે, કારણ કે અમને સહજ રહે છે જ્ઞાન દર્શન. આટલા સંજોગોમાં તો અમને રહેશે, પણ જયારે એના કરતા હાયર લેવલના આવે તો પાછું અમારે ત્યાં પણ પુરુષાર્થ કરવું પડે. એટલે આમ સહજ રહેશે. કેમ? ઓલરેડી પાસ થઈ ગયા છે. તમે જેમાં પાસ થઈ જશો એમાં પછી પુરુષાર્થ રિઝલ્ટ રૂપે આવશે. જેમ ઉદય મન વચન કાયને રિઝલ્ટ રૂપે આવે છે, એમ તમારો પુરુષાર્થ પણ કેવા આવશે? કુદરતી રત્નના શુદ્ધાત્મામાં રહેવાશે, કુદરતી શુદ્ધાત્મામાં રહેવાશે અને કુદરતી રત્ન દેખાશે તમને. લાસ્ટ બર્થમાં શું હોય છે? પુરુષાર્થ રિઝલ્ટ રૂપે આવી ગયો છે. શુદ્ધાત્મા પદમાં રહે અને કુદરતી રત્ન જોયા જ કરે, જોવું ના પડે, કારણ કે સ્વભાવ થઈ ગયો. હવે રિઝલ્ટ આવી ગયું, હવે એક્ઝામ આપવાની ખ્યાલ આવ્યો. બધું કુદરતી રચના જ દેખાશે 100%. એ છેલ્લો બર્થ, કારણ કે અજ્ઞાન છે. This is a scientific process. આવું અદ્ભુત વિજ્ઞાન છેલ્લા 2006 years 2600 years થી ઓપન જ થયું છે. એક મહાવીર ભગવાને છેલ્લામાં છેલ્લું ઓપન કર્યું હતું, એ પછી કોઈએ નથી કર્યું. Of course there are so many scientists are coming, but they cannot explain because of the situation. They are capable, but there were no circumstances. So the speech is depend on circumstances. It is not a independency. It's a depend. આજે તમને પ્રશ્ન પૂછો, જવાબ આપી શકું છું, ના પૂછો તો હું ના આપી શકું. So મન વચન કાયા તો બધાના પાછળ કુદરતી રચના જ છે. એટલે જ્ઞાન હોય એટલે કહી શકે એવું જરૂરી નથી. સમજાય છે? સંજોગ જોઈએ. અને આપણે એવું કહીએ છીએ કે આપણને જ્ઞાની પુરુષનો ભેટો થાય છે કે પછી અધ્યાત્મ વિજ્ઞાનીનો ભેટો થાય છે, તો એ આપણી પુણ્યના આધારે છે. યસ. તો એ જે પુણ્યની વાત કરીએ છીએ એ આપણે પાછું જે બે ભાગ બતાડ્યા, એક ભાવ એવા છે જે આપણને સંસાર વધારવા માટે છે, બીજું સંસારને ઓછું કરવા માટે છે. તો એ સંસાર ઓછા કરવા વાળા ભાવની વાત કરીએ છીએ. નહીં, આ પાપ પુણ્ય ધર્મ ધ્યાનના લેવલ પર નથી, આ વિજ્ઞાનના લેવલ પર છે. અહીંયા પાપ પુણ્ય સબ્જેક્ટ નથી આવતો, પણ એક પુણ્ય કહેવાય. પણ પુણ્ય કેવું? સબ્જેક્ટ ટુ યોર ડેવલપમેન્ટ, સબ્જેક્ટ ટુ મોક્ષ. અહીંયા પાપ શબ્દ નથી આવતો. પુણ્ય પણ એટલા માટે કહેવાય, પુણ્ય મીન્સ ઇટ્સ વન કાઇન્ડ ઓફ ક્રેડિટ. So you got it, the good circumstances. ગુડ મતલબ સબ્જેક્ટ ટુ મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક. ગુડ કે બેડ, ગુડ પણ બેડ તો ના જ કહેવાય, કારણ કે ઇટ્સ રિલેટિવ ટ્રુથ. પણ મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક. ધારો કે તમને મહેલ મળે કે ઝૂંપડી મળે, પણ નાની ઉંમરથી માતા પિતા ભાઈ બહેન ધર્મગુરુ એવા મળે કે તમે મોક્ષ માર્ગે આગળ લઈ શકો. અને તમારી પુણ્ય બહુ સારી હોય ને તમને મહેલ મળે, પણ તમને મોના સામ્રાજ્યમાં એવા ફસાઈ નાખે કે આ જ્ઞાન ખુલ્લું જ ના થવા દે, તો પછી એ સંજોગો તમારા માટે પુણ્યશાળી ખરા પણ કામના. એટલે મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક નો મતલબ તમે જે પર્પસથી કોઝ પુરુષાર્થ કર્યો તો એને અનુરૂપ સંજોગો આપવા. પછી એ ગરીબ કે પૈસાદાર એ તો રિલેટિવ શકે છે, એ તમારો ઉદય કર્મ છે, પણ એ ઉદય કર્મની વેલ્યુ તારે હોતી નથી. જ્યારે સબ્જેક્ટ ટુ મોક્ષ આવે છે, સબ્જેક્ટ ટુ કુદરતી રચના આવે છે, તો પછી એમાં પાપ પુણ્ય સબ્જેક્ટનું વેલ્યુ નથી. માટે આપણે અહીંયા સામાયિક પ્રતિક્રમણની વેલ્યુ નથી. માટે આપણે પાપ પુણ્યની વાત કરતા નથી. વિજ્ઞાનમાં પાપ પુણ્યની વાત ના કરાય, એ બધું ધાર્મિક વસ્તુ છે. સામાયિક પ્રતિક્રમણ બધું ધાર્મિક છે. આધ્યાત્મમાં આ બધી વસ્તુ ના આવે. આધ્યાત્મમાં મન વચન કાયાથી મુક્ત રહેવાનું આવે, ધર્મમાં મન વચન કાયાને સુધારવાનું આવે, અને સામાજિક લાઈફમાં મન વચન કાયા એકબીજાને હેલ્પફુલ થવા. આ 3 ગ્રેડ છે: હેલ્પફુલ થવું, સુધારવું અને છૂટા રહેવું. છૂટા રહેવું એ વિજ્ઞાન છે, સુધારવું એ ધર્મ છે, અને હેલ્પફુલ થવું એ માનવ ધર્મ છે. આવું ક્લેરિફિકેશન આ વર્લ્ડમાં 26 વર્ષમાં કોઈ નથી કર્યું. યસ કે નો? ધેટ્સ ઇટ. લોકોને સમજાય આમાં કશું ખોટું છે એવું કહેતા ચૂઝ એનીવન. સમજાય છે? તમારે શું ચૂઝ કરવું છે? માનવ ધર્મ, ધાર્મિક ધર્મ કે આધ્યાત્મિક? ચૂઝ એનીવન.
ત્રણેયમાંથી કશું ખોટું છે એવું કહેતા નથી. ઓલ આર ધ ડિફરન્ટ લેવલ. સમજાય? જય સચિદાનંદ. બીજા કોઈને પ્રશ્ન પૂછવાનો છે? यस, कोई बात नहीं. कोई नहीं है तो पूछिए आप. कोई बात थोड़ा थोड़ा खोल तो नहीं, वेंटिलेशन जरा गर्मी लग रही है. ये इस तरफ से खोले ना, है खोलो थोड़ा यार, नहीं थोड़ा यार खोल दो थोड़ा कच खाली करा वेंटिलेशन, क्योंकि घुंघरामण થાય છે. આખું નહીં ખોલશો બસ ફોર વેન્ટિલેશન. बस 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 आवाज दो आपसे. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. स्वामी जी, आत्मा का सफर जानना था कि पहला गुणस्थान से लेके 14वां गुणस्थान तक जो हम लोगों ने अभी तक समझा है धार्मिक हिसाब से, आध्यात्मिक हिसाब से हमको समझना है कि पहला गुणस्थान से लेके 14वां गुणस्थान तक आत्मा का सफर कैसा है, आप थोड़ा समझाएंगे? 1 से 3 अज्ञानी का है. हाँ जी, 1 से 3 अज्ञानी. चौथा संकेती का है. हाँ जी. संकेत, उसमें भी 2 प्रकार के संकेत है, व्यवहार संकेत, निश्चय संकेत. हाँ जी. व्यवहार संकेत हो सकता है इंसान में डेवलपमेंट होने के बाद, मगर निश्चय संकेत तो दृष्टि मिलने के बाद होता है. समझना अलग चीज है और दृष्टि मिलना अलग चीज है. समझना मतलब प्राइमरी होता है, दृष्टि मिलना मतलब परिपक्व होना है. योर बिलीव विथ कॉन्फिडेंस. एंड माइंड का मतलब होता है यू नो दैट कि आई एम अ सोल, बट देयर इज नो वैल्यू इन अवर लाइफ. हम जो भी पुरुषार्थ करेंगे प्रकृति के लिए करेंगे, भले मैं आत्मा को ऐसा मानूंगा तो मतलब ये व्यवहार संकेत बोलते हैं. निश्चय संकेत का मतलब कोई भी अवस्था में मैं कौन हूँ वो लक्ष्य रखने का पुरुषार्थ करता हूँ, वो निश्चय संकेत होता है. समझ में आया? समझ में. संकेत में 2 प्रकार का है, व्यवहार संकेत और निश्चय. उसके बाद जैसे जैसे निश्चय संकेत होने के बाद जब आप अज्ञान को नाश करोगे, ऐसे आपका गुणस्थानक बढ़ेगा. 5, 6 और 7. जितना जितना अज्ञान का लेवल खत्म होगा आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा. अज्ञान का लेवल खत्म होगा डेवलपमेंट बढ़ेगा. अज्ञान का लेवल खत्म होगा डेवलपमेंट बढ़ेगा. 7 तक डेवलपमेंट है. क्या है? 7 तक या अप टू 7. हाँ जी. 7 तक डेवलपमेंट का मतलब होता है आपने सब कुछ जान लिया. प्राइमरी डेवलपमेंट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. अभी जो कुछ सब कुछ जान लिया है 100%, इसको 100% अप्लाई करना है. उसके लिए 8, 9, 10, 11 है. क्या बताया? 8, 9, 10, 11. अप्स एंड डाउन, स्नैक्स एंड लेडर. हाँ जी. सांप सीढ़ी बोलते हैं. हाँ जी. वो है. 7 से नीचे नहीं जाओगे फिर. हाँ. और 8, 9, 10 वो स्टैंडर्ड नहीं, वो तो परिणति है. हाँ. जब परिणति बढ़ जाएगी 8, 9, 10, 11 तक पहुंच जाएंगे. हाँ. फिर वापिस 7 में आ जाएंगे. हाँ. फिर 7 आ जाएगी, 9 जाएगी, फिर वापिस आ जाएगी. हाँ. तो 7 इज द मैक्सिमम. और 8, 9, 10, 11 एप्लीकेशन है. और अगर आप 7 के बाद आप 48 मिनट तक, कितना? 48 मिनट तक हाँ जी. आपका ज्ञान दर्शन शुद्ध रहा कंटिन्यूअस, हाँ जी. तो यू क्रॉस द 11 एंड एंटर इन अ 12. देन यू नेवर कम बैक. यानी अज्ञान में आप अज्ञान खत्म हो गया, पास हो गया. फिर बाद में 13वां का मतलब केवल ज्ञान और 14वां का मतलब निर्वाण. बाद में पुरुषार्थ नहीं. 12 तक पहुंचने के लिए ही पुरुषार्थ है. हाँ जी. वहां तक अप्स एंड डाउन्स होता है और डेवलपमेंट 7 तक है. अध्यात्म डेवलपमेंट 7 तक है. और एप्लीकेशन 8, 9, 10, 11 है. और एप्लीकेशन में अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा. केवल दर्शन कौन सा केवल स्थान तक रहेगा? 12 में. 12 के आगे फिर केवल ज्ञान. फिर 13 में तो केवल ज्ञान, 14 में निर्वाण. तो 12वें गुंठाना तक केवल दर्शन हो गए. ये केवल ये 7वें गुंठाने तक समझ में आ गया, एप्लीकेशन में कमी है. और एप्लीकेशन में कमी वही आपका अज्ञान. अभी विज्ञान समझ में आ गया, एप्लीकेशन में कमी मतलब आपने अज्ञान का यूज किया. ज्ञान है, विज्ञान है, मगर एप्लीकेशन नहीं किया. तो क्या एप्लीकेशन किया? अज्ञान का. दे क्रिएट द कॉज. आप समझे? 7वें गुंठाने के बाद भी आप 7वीं नरक के कर्म बांध सकते हैं और देवलोक के कर्म भी आ सकते हैं. 7वें गुंठाने के बाद जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर है पद्मनाभ, वो भी नरक में है, ऐसा जैन शास्त्र बताते हैं. जैन शास्त्र बताते हैं. और वहां से यहाँ आएंगे और तीर्थंकर होंगे.
तो इसीलिए कि नरगति में जाना कोई बुराई नहीं है, हाँ, मगर जो बीज डाला है हाँ, तो जाना ही पड़ेगा बिफोर द लास्ट बर्थ, बिफोर द लास्ट वन। तो लास्ट बर्थ कैसे आएगा? यहाँ जाने के बाद नरगति में जाएंगे, हाँ जी, वो तो पहले कंप्लीट करने पड़ेगा। नरगति, देवगति या पशु योनि जो भी है वो पहले फिनिश करनी पड़ेगी, फिर बाद में लास्ट बर्थ आएगा ह्यूमन लाइफ का, फिर मोक्ष में जाएंगे। आप समझे? समझ में। मगर नरगति में गया तो ज्ञान कम नहीं होता है, कम भी नहीं होता, ज्यादा भी नहीं होता है, वहां सफरिंग है, नो क्रेडिट नो डेबिट, सिर्फ डिस्चार्ज। सेफ डिस्चार्ज, वन वे। बॉडी भी वहां ऐसा होता है, वहां सोशल रिलेशन नहीं होता है, देवलोक में भी नहीं है, नरक लोक में भी नहीं है, नो सोशल रिलेशन। यहाँ डेबिट की भुगतान या क्रेडिट की भुगतान, दैट्स इट, और कोई मैनर नहीं। जैसे आप जन्म एग्जाम्पल देता हूँ, देवलोक का मतलब जैसे आप पैदा हुए, आपको 100 करोड़ का क्रेडिट कार्ड दे दिया, अभी आपको जो करना है वो करो। आप समझे? तो और कुछ करना नहीं, म्यूजिक करना है, ये पढ़ाई करना है, नौकरी करना है, धंधा करना है, कुछ नहीं, जो भी लेना है यूज कर दो। कार्ड तो है ही आपके पास। आप समझे? और डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है? लोन का ही पेमेंट करो, लास्ट बात तक पेमेंट ही करना है आपको, नो क्रेडिट। वो नरगति है। और यहाँ जो क्रेडिट डेबिट है वो सब्जेक्ट टू पर्सन है, वहां सब्जेक्ट टू पर्सन, वहां वन वे क्रेडिट एंड डेबिट है। यहाँ जो क्रेडिट एंड डेबिट है वो सब्जेक्ट टू पर्सन, इसीलिए यहाँ कर्म है, वहां कर्म है, मगर वहां वन वे कर्म की भुगतान है, वहां सब्जेक्ट टू पर्सन भुगतान नहीं। ये प्लेस है जहाँ आपको सफरिंग है, पुण्य और पाप की। और ये जो यहाँ है वो सफरिंग के साथ क्रिएशन भी है, वहां क्रिएशन नहीं है। ये सब विज्ञान को समझना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वहां बॉडी भी ऐसी है, ऐसी बॉडी नहीं है, ना फूड नहीं है, वाटर नहीं है, एयर नहीं है, ब्लड नहीं है, बॉडी हमारे जैसी दिखती है मगर आर्टिफिशियल है। कैसी है? आर्टिफिशियल। वो नरगति में मर्क्यूरी का बॉडी होता है, मर्क्यूरी कितनी भी बार काटोगे मरेगा नहीं। और देवलोक के अंदर वैक्स का बॉडी है, मेन आता है ना, और इसलिए देव लोगों को परछाइयां नहीं होती है, ट्रांसफरेंट बॉडी होता है। ये सब विज्ञान नहीं जानते तो लोगों को चमत्कार लगता है, चमत्कार नहीं है, साइंस है, पूरा वर्ल्ड साइंस है। हम नहीं जानते वो एक अलग बात है, कोई जगह चमत्कार नहीं है, एवरीथिंग इज साइंस। ये भूत वगैरह होते हैं स्वामी जी, वो देवलोक लोअर कैटेगरी, भूत पिशाच वो इधर ही रहते हैं आसपास अपने साथ में, क्या उनका अलग लोग रहते हैं ये भूत वगैरह? वो कहीं भी रहे, हमको क्या तकलीफ है, उनका हिसाब जुदा है, हमारा हिसाब, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। कभी कभी किसी के साथ हिसाब रहेगा तो तकलीफ देते हैं आके, उनको हेल्प भी करेगा, वो तो हिसाब है, क्या करेंगे, मगर उनके पास भी फ्रीडम नहीं है, देवी देवताओं के पास भी फ्रीडम नहीं है। दे हैव अ पावर बट नो फ्रीडम। पावर होता है मगर फ्रीडम नहीं, यही बात है। तो स्वामी जी अभी महावीर स्वामी ने जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका का उन्होंने चतुर्विध संघ बनाया मोक्ष मार्ग के लिए, तो ये आपको समझना है अध्यात्म विज्ञान की परंपरा चालू किया। हर तीर्थंकर भगवान चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, वहां से वो क्या कहते हैं उनका समय नहीं, क्या कहते हैं उसका, जैसे कहते हैं ना शासन स्वरूप होता है, जैसे अभी महावीर का शासन है, प्रथम तीर्थंकर का, आप समझे, वो एस्टैब्लिश करके गए, चलता रहेगा। जब प्रथम तीर्थंकर आएंगे तो उनका शासन समाप्त होगा, फिर उनका चालू होगा, फिर दूसरा तीर्थंकर आएगा तो पहले का समाप्त होगा, फिर दूसरे का होगा। ये मोक्ष मार्ग के लिए नहीं, ये वाला जो साधु साध्वी है मोक्ष मार्ग के लिए, मगर अनुभवी चाहिए ना, अनुभवी नहीं है ना, अभी तो ट्रेडिशनल है, कोई केवल ज्ञानी नहीं है, कोई तीर्थंकर नहीं है, कोई अनुभवी ज्ञानी नहीं है, तो मार्ग तो चलता है, वो तो परंपरा से चलता है। तो पहले विज्ञान से शुरू हुआ था, बाद में विज्ञान से ही होता है, विज्ञान से ही होता है। भगवान कभी ट्रेडिशनल टॉक नहीं करते हैं, भगवान अलग अलग कैटेगरी का मार्ग बताते हैं,
जब तुम्हारी कैटेगरी ये है तो ये करो, ये कैटेगरी तो ये करो, ये कैटेगरी है तो ये करो। ये नहीं कहेगा कि आपको ये करना ही पड़ेगा, वो नहीं कहेगा। आप समझे? भगवान अपने देशना के अंदर कभी भी दीक्षा लेने की बात नहीं करते, कभी नहीं करते। लोग स्वयं दीक्षा लेते हैं क्योंकि भगवान की भाषा ऐसी होती है, उनको वैराग्य आ जाता है और अपने आप पूरे संसार की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वो छोड़ देते हैं। आप समझे? वो ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम छोड़ के यहाँ आ जाओ, नहीं, ये भगवान का, ये तीर्थंकरों का संदेश नहीं है। वो तो उनकी दृष्टि बहुत हाई लेवल की, वो ऐसी बातें नहीं, लोअरशिप की बातें नहीं करेंगे। आप ये करोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा वो नहीं कहेंगे। तो ये भगवान की तीर्थंकरों की भाषा तो हाई लेवल की होती है, मगर आज ये काल में कौन समझेगा? नहीं समझे और है भी नहीं। आप समझे? जो भी शास्त्र है सब भ्रष्ट हो चुके हैं। क्या है? जो भी थोड़ी बात बची हुई, हालांकि एक बात जरूर ध्यान रखो, कोई भी धर्म का शास्त्र मूल पुरुष ने लिखा नहीं है, चाहे आगम है, चाहे वेदांत है, या चाहे गीता है, चाहे महाभारत है, या और कोई शास्त्र की बात है, कोई भी शास्त्र मूल पुरुष लिखते नहीं। उनके जाने के बाद हजारों साल के बाद ये शास्त्र बनते हैं, और वो भी उनका जो रचयिता होता है वो अप्रोक्सीमेट, मतलब अप्रोक्सीमेट लिखता है, बट गुड विद गुड इंटेंशन लिखता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं लिखते, नहीं लिख पाते। इसके बाद भी उसी शास्त्र के अंदर टीका टिप्पणी होती है, तो करेक्शन 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 ये करते रहते हैं बड़े बड़े आचार्य भगवान। तो वो भी मूल शास्त्र रहता है नहीं। तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, अभी क्या करोगे? वो पढ़ोगे तो वही गोल गोल आएगा। आप समझ में? स्वामी जी, महावीर ने जो बताया 12 तप बताया, 6 अभ्यंतर 6 बाह्य तप, वो उसका क्या मीनिंग है अध्यात्म विज्ञान? उसमें मीनिंग ये है कि भाई जो लोग बाह्य तप करते हैं वो अभ्यंतर तप में जाने के लिए करना है। इट्स लाइक अ प्रैक्टिस। मगर हम क्या कहते हैं, बाह्य तप में ही फंस गए, अभ्यंतर में गए नहीं। अभ्यंतर तो नाम क्या रहे, और लोगों का जो प्रेजेंटेशन है, लोगों को जो वैल्यू है और लोगों को समझाते हैं, वो बाह्य तप के लिए समझाते हैं, अभ्यंतर तप के लिए समझाते नहीं। तो फिर क्या करेंगे? समझ में आया? समझ में आया। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो काल का प्रभाव। महावीर ने बताया कि संयम का मार्ग अपनाना चाहिए। हाँ, तो संयम का मार्ग क्या होता है? संयम का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को नाश करके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करना, वही संयम है। संयम का मतलब दीक्षा नहीं है। आप समझिए, दीक्षा तो बाह्य व्यवहार है। संयम का मतलब दीक्षा नहीं है। ज्ञान और दर्शन को शुद्ध बनाओ, वो संयम है। अगर ज्ञान दर्शन शुद्ध रहेगा तो चारित्र शुद्ध अपने आप होगा। चारित्र का मतलब वितरागता, चारित्र का मतलब मनोवचन काया नहीं। मनोवचन काया की शुद्धि कभी होती नहीं है, किसी की भी नहीं। मन वचन काया जो रामकृष्ण महावीर का था वो भी राग द्वेष वाला ही था, मगर वो कुदरती रचना था, उसका वो डूअर ओनर नहीं थे। और इसलिए मन वचन काया किसी का भी वितराग है वो इम्पॉसिबल बात है, मगर दृष्टि में वितरागता हो सकती है। तो ये सब्जेक्ट ही डिफरेंट है, मगर ये बातें बताने वाला कौन है? पूरा तुम वितराग मनोवितराग, मन वचन काया कैसे वितराग बनेगा? मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन है, उनके पास राग द्वेष करने की भी सत्ता नहीं है, वो तो कर्मों की भुगतान के लिए उसके पास क्या चॉइस है? वो राग भी करेगा द्वेष भी करेगा तो भी कुदरती रचना है, वो खुद करते हैं। तो दृष्टि में वितरागता हो सकती है, दृष्टि में राग द्वेष लाइव हो सकता है, प्रकृति में राग द्वेष लाइव होते हैं नहीं, वो मैकेनिकल है। तो इस मैकेनिकल पार्ट को कोई करेक्शन नहीं कर सकता। यही तो क्या है, फंडामेंटल इग्नोरेंस यही है। इसी तरह संवर और निर्जरा के संवर का मतलब होता है स्वस्वरूप में रहना। तो स्व संवर पूर्वक निद्रा करेंगे। अगर स्वस्वरूप में नहीं रहोगे, शुद्धात्मा पद में न रह के अवस्था को कुदरती रचना नहीं रहोगे, तो बंध पूर्वक निद्रा होगी, और कुदरती रचना देख के शुद्धात्मा पद में रहोगे तो संवर पूर्वक निद्रा होगा। और जब बंध पूर्वक होगा तो भी आश्रव भी होगा। आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष। नहीं समझ में आया? समझ में आया।
समझिए अभी अलग अलग ज्ञानी ने अलग अलग एंगल से बहुत सारा चीज बोला, अलग अलग ज्ञानी ने अलग अलग एंगल से बहुत सारी चीज समझाई है। अभी गुरु नानक जी ने बोला है कि ये ओंकार, साईं बाबा बोला सबका मालिक एक है, मोहम्मद ने बोला अल्लाह नूर है, और शंकराचार्य बोलते कि आकाश से जो हर बूंद गिरती है वो समुद्र में अंत में एक होती है। तो कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, कण कण में मैं ही हूँ और सब में अंत में मुझ में ही विलीन होना है। अलग अलग ज्ञानी ने अलग अलग एंगल से समझाया। महावीर ने क्या कहा, वो नहीं बोला। महावीर ने बोला कि आत्मा ही कर्म का करता है और खुद सुख दुख का करता है, और आत्मा ही परमात्मा बनता है। मगर आत्मा एक है, अनेक है? आत्मा एक है, आत्मा एक है। एक मोक्ष में गया, एक नहीं गया तो नहीं, अनेक है आत्मा में भी। इंडिविजुअल हमको तो बाहर देखना नहीं है। हाँ, अनेकांत से दो समझ में है। नहीं, आत्मा अनेक है, अनेक है, आत्मा अनेक है, इंडिविजुअल है। हाँ, मगर आत्मा की क्वालिटी एक है। क्वालिटी, हाँ, क्वालिटी वाइज द सोल इज द सेम, हाँ, नेचर वाइज द सेम, हाँ जी, and the existence wise the same soul, हाँ, but the अस्तित्व हाँ, existence wise individual। हाँ जी, और इसीलिए मुक्ति ये व्यक्तिगत बात है, वो है ग्रुप की बात नहीं है, सामूहिक बात नहीं, इंडिविजुअल। राम मोक्ष में गए, हाँ, सीता अभी यहाँ है, हाँ, मयूर मोक्ष में गए, उनकी धर्मपत्नी यहाँ है, हाँ, ये तो इंडिविजुअल बात हो गई। हाँ जी, तो आत्मा इंडिविजुअल है, हाँ, मगर ये अलग अलग व्यक्तियों ने जो अलग अलग प्रकार का जो एक्सप्रेशन दिया है, हाँ, उसका मीनिंग लोग नहीं समझ पाए। हाँ, मीनिंग लोग नहीं समझ पाए। अभी जीसस ने बोला गॉड इज लव, गॉड इज लाइट करके बोला, तो सब अलग अलग। जीसस ने जो कहा, पैगंबर ने जो कहा, वो तो उनकी भाषा ही अपोज थी, तो उनकी जो सोच थी, सोच के मुताबिक करेक्ट है। हाँ, मगर जो ज्ञानी पुरुषों ने जो बताया, अनुभवी पुरुषों ने बताया, उनकी उनकी दृष्टि कंप्लीट है। मगर कंप्लीट बात को जो प्रेजेंट करने वाले आए, तो उन्होंने अपनी भाषा में उनको व्यक्त करने का प्रयास किया, देखकर नहीं, बुद्धि से समझकर, फॉर गुड विशेष। ये शंकराचार्य ने बताया कि आखिर बूंद तो समुद्र में ही मिलती है, यानी एक है, एक है। तो बात यही है, श्रीधर क्षेत्र में सभी आत्मा एक ही, वो समुद्र है, मगर एक्सिस्टेंस वाइज इंडिविजुअल है, बट क्वालिटीज एंड नेचर वाइज एक ही है। मैं चम्मच से पानी लूंगा, वो टेस्ट करवाऊंगा, कोई समुद्र का पानी है, यस और नो, यही बात कहना चाहते हैं, मगर प्रेजेंटेशन डिफरेंस है। तो लोगों ने ये समझा कि आत्मा एक है, ऐसा कहा, आप समझे नहीं? तो ऐसा नहीं है, आत्मा इंडिविजुअल है, अलग ही मोक्ष जाना है सबको, अलग ही पुरुषार्थ करना है। बंधन की अनुभूति भी व्यक्तिगत है और मुक्ति की अनुभूति भी व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं है। मगर जब मुक्ति होती है तो एक ही प्रकार की अनुभूति सबको होती है, और बंधन होता है तो हैज फॉर द कॉज बंधन की अनुभूति होती है। आप समझे? यस, धन्यवाद सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। એ મોક્ષના માર્ગ દર્શાવનારા જ્ઞાની અનુભવી પુરુષ, મારા તરફથી તમને કોટી કોટી નમસ્કાર। જય સચ્ચિદાનંદ। લોકો અત્યારે એમને ઘણા બધા નામ લીધા, એ ધર્મમાં અમને મળ્યા એટલે સાંભળ્યા હતા, પણ જે સહજ રીતે તમે બતડાવ્યું કે એવી રીતે કે ऐसे होता है, ये हमें नहीं लगा था पहले। धर्म ने हमें इतना दबा के और डरा के रखा था कि हमें लगा कि जब भी ज्ञानी भी मिलेंगे तभी नहीं पता था, तो ऐसा लगता था कि उनके शब्द कुछ अलग ही होंगे। जैसे अभी वंदित तो अगर सूत्र होते और वो शायद हमें समझे नहीं समझे, क्या पता। और अनुभवी अभी आप हमें प्राप्त हुए हो गुणानुबंधी के कारण, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। और जिस सरल रीति से आप हमें समझाते हो, सहज, यही जो हम भाषा बोलते वही सहज रूप आप बताते हो, ये इसलिए हमें ये समझ में आता है। बहुत ही सहज वाणी है आपकी, एकदम सीधी तरीके से आप शब्द बोलते हो, एक एक शब्द आपका अमौलिक है। हमारा माटे हमें अनुभव करिए छे प्रभु, जे रस्ते तो आप दिखाते हैं हमें, हम उसका उपयोग करते हैं तो हमें निराकुलता महसूस होती है। अब जो इन्होंने गुणस्थानक के बारे में पूछा था, उसी के बारे में मुझे पूछना था
कि सातवें गुणस्थानक के बारे में थोड़ा एक पूछना है कि कैसा है, और सातवें से ऊपर भी पूछना है। सातवें गुण फुल डेवलपमेंट, यानी विज्ञान आपको समझ में आ गया, अनुभव में नहीं आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सो यू नो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द साइंस, बट एप्लीकेशन बाकी रहा। जो व्यक्ति एप्लीकेशन किसी भी तरीके से करता है उसको उसका गुणस्थानक कई बार समझ में अप्स एंड डाउन्स होता है। मैंने कहा वो गुणस्थानक एक्चुअली परमानेंट नहीं रहता है, 7 के बाद परमानेंट नहीं रहता है, अप्स एंड डाउन्स होता है, परिणति के ऊपर आधारित है। उसको उसका समझ में थोड़ा बहुत आ जाता है कि अपन ऊपर नीचे जा रहे हैं ऐसे। हाँ, वो समझ में आता है। उसका परिणति का मतलब ये होता है जब स्थिर रहेगा तो ऊपर जाएगा, फिर अस्थिर रहेगा नीचे आ जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। They are not apply the science, whatever they have it, उनके पास जो है वो उपयोग नहीं करेगा तो समझ में आ जाएगा हम नीचे आ गए, और उपयोग किया तो ऊपर भी बढ़ेगा। समझ में आएगा, इसको परिणति बोलते हैं। जो व्यक्ति अप्लाई करता है उसको उसका पता चल जाता है, उसको आफ्टर 7 तो समझ में आएगा। सामने वाले से सर्टिफिकेट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सामने वाले के पास है ही नहीं विजन तो क्या करोगे, उनका सर्टिफिकेट की जरूरत ही कहाँ है, बिल्कुल जरूरत नहीं। और 7वें से ऊपर जाके, जैसे 7वें का मतलब क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर हो गए, यू गॉट इट द सर्टिफिकेट कि आई एम अ डॉक्टर टुडे, तो डॉक्टर हो गए आप, तो प्रैक्टिकल आपको खुद ही करना पड़ेगा, बाकी है, तो अनुभव बाकी है आपका, मगर यू हैव अ डिग्री एज अ डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर, क्वालिफाइड, बट नॉट प्रैक्टिस। तो आपको जब डॉक्टर बनने के बाद ये आपको जब कुछ प्रैक्टिस करना है तो आपको डॉक्टर की, अनुभवी डॉक्टर की प्रेजेंस चाहिए। यू कैन नॉट डू द ऑपरेशन डायरेक्टली आफ्टर डिग्री, समझ में आया? क्योंकि अनुभवी होगा तभी तो प्रैक्टिस होगी ना, वो करेक्शन भी करेगा। पढ़ाई अलग चीज होती है और प्रैक्टिकल अलग चीज होता है। हाँ, ये हम अभी महसूस कर रहे हैं कि अनुभवी के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता, कोई नहीं सकता, मार्गदर्शक बताएगा तभी हम चल सकते हैं। संसार में भी ऐसा होता है, संसार में भी अनुभवी पुरुष हमको गाइड करते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, क्योंकि उनका अनुभव है। उसके बदलाव में होता है या नहीं होता है वो एक अलग बात है, मगर ज्ञान तो देता है। ऐसे ज्ञानी अनुभवी होते तो वो गाइड करता है कि इस प्रकार की अवेयरनेस चाहिए, इस प्रकार की अवेयरनेस चाहिए, इस प्रकार की सहजता चाहिए, इस प्रकार का टेंशन की जरूरत नहीं है, इस प्रकार के सोच की आपको जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा, पास्ट में क्या किया था, ये सब कुछ भूल जाओ। आप समझे? आज की बात करो जी, तो बोलिए। 7वें से आगे ऊपर जाने के लिए 48 मिनट कंपल्सरी है कि कंपल्सरी मतलब 12 तक पहुंचने के लिए 48 मिनट कंटिन्यूअस रहना कंपल्सरी। 12 के ऊपर नहीं जाना है तो 7वें के बाद आप 5 मिनट रह सकते हैं, 10 मिनट रहते हैं, 15 मिनट रहो फिर नीचे आ जाओ, 20 मिनट रहोगे फिर नीचे आ जाओ, 25 मिनट रहोगे फिर नीचे आ जाओ, नीचे मतलब 7 पे आ जाओ, तभी तो कर्म बनते हैं। ये देखा कि भगवान क्यों नरक में गए, 7वें के बाद ही गए ना, डेवलपमेंट तो था, उपयोग भी था, मगर उस उपयोग के अंदर कमी थी तभी तो कर्म बने, और कर्म बने तभी तो भुगतान आई। उस समय केवल दर्शन नहीं होता है, अगर केवल दर्शन होता तो कर्म नहीं होता। जी, समझ में आया? केवल दर्शन के बाद कर्म नहीं होता है, तो केवल दर्शन नहीं था उनको, आप समझे ना? दर्शन समझ में आ गया था मगर केवल दर्शन नहीं था, यानी एप्लीकेशन नहीं था, पास नहीं किया। दे हैव अ डिग्री, क्या बताया, बट नॉट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है वो 12 पहुंच गए और प्रैक्टिकल नहीं हुआ है वहां तक अप्स एंड डाउन, वो अनुभव कर रहे हैं ना, कभी आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर जाएगा, ऐसा रहेगा, क्योंकि 7th के बाद डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए आगे जाने का सवाल तो है नहीं, सिर्फ परिणति का सवाल है। आप कितना, आपका शुद्ध ज्ञान दर्शन कितने समय तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, आप समझे ना, यही आपकी कैपेसिटी है। और अगर वो 48 मिनट हो गए देन यू ट्रांसफर इन 12, फिर आप वापस नहीं आओगे, फिर 12 के बाद 13 और 14, और जब 14 घंटा की बात आप जब शास्त्र में पढ़ने जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इतनी किताब पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, आप समझे? तभी तो मैंने कहा
शास्त्र ज्ञान अलग चीज है और अनुभवी पुरुष का ज्ञान अलग चीज है। आप समझे ना? शास्त्र में इतनी सारी बातें लिखी गई है जो आम लोगों को समझने के बस की बात नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे। इतना डिटेल में जाएंगे, हालांकि नॉट रिक्वायर्ड, मगर शास्त्र तो इसको ही कहेंगे ना, डिस्क्रिप्शन क्या कहेंगे, वर्णन तो करेंगे ना। ગૂંઠાણાવાળું જે છે એનો વેદાંતની ભાષામાં જે કહે છે ચક્રોવાળું, એ બાબતનું જરા એ બધું એક જ છે। ગૂંઠાણું એ પણ ડેવલપમેન્ટ, ચક્રો એ પણ ડેવલપમેન્ટ। શરીરમાં ગૂંઠાણાય નથી, ચક્રાય નથી। હા બોલો શું? જેનું જ્ઞાન, જેટલું જ્ઞાન દર્શન શુદ્ધ એટલું આધ્યાત્મિક ડેવલપમેન્ટ વધારે। આ ડેવલપમેન્ટને વેદાંતની ભાષામાં ચક્રો કહે છે અને જૈનો ગૂંઠાણા કહે છે। ગૂંઠાણા કહે છે ને, પણ સૂત્ર છે ને, આપણું સૂત્ર છે ને, કીધેલું જ છે। હા, એટલે આમાં જેમ પેલું એક્સપ્લેન કર્યું કે ભાઈ સાતમા ગૂંઠાણા સુધી પછી તો એ રીતે આ ચક્રની બાબતમાં જરા એ ચક્ર એ પણ સ્ટેજીસ છે। હા, એટલે આપણે જે કહે છે મૂલાધાર ચક્ર, મૂલાધાર સ્વાદિષ્ટ, મૂલાધારથી માંડીને અહીંયા સુધી ડેવલપમેન્ટ છે। પછી અહીંયા જે આવે છે આજ્ઞા અને ચક્ર, હા આજ્ઞા ચક્ર, ત્યાર પછી સહસ્ત્ર છેલ્લમ છે। હા, અહીંયા સુધી પ્રોસેસ છે। અહીંયા એટલા સિમ્બોલ બતાવે છે બધા। વિશુદ્ધ ચક્ર સુધી વિશુદ્ધ, પછી વિશુદ્ધ એટલે ક્લેરિફિકેશન થઈ ગયું, અચ્છા, પછી એપ્લિકેશન, આજ્ઞા, અને પછી રિયલાઇઝેશન। બધા અલગ અલગ ડિફરન્ટ કાઇન્ડના નામ છે, જેને જે રીતે અનુભવ થયો એને પુટઅપ કર્યું છે। બટ થિયરી ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ધેન પ્રેક્ટિકલ। શબ્દોની માયાજાળમાં ફસાવવું નહીં, સમજાય છે? જય સચ્ચિદાનંદ। બોલો હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। મને એવી પરિણીતિને એવું પ્રતીતિ થાય સાહેબ કે કુદરતી કાનૂનના ન્યાયાધીશ સામે બેઠા છે ત્યાં પ્યોરિટી સિવાય કોઈ માણસ આવી શકે નહીં, એને પ્યોરિટીનું લક્ષ્ય હશે એ જ ત્યાં સુધી પહોંચશે, મારું એવું માનવું છે। જય સચ્ચિદાનંદ। લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, સમય થઈ ગયો છે ભાઈ। કાર્તિક કર્મ વિશે થોડું બ્રીફમાં સમજાવો। બપોર રાખો ને, ટાઈમ લેશે, આખો સબ્જેક્ટ છે એટલે પ્લીઝ આપણે પ્રાર્થના બોલી દઈએ છીએ। હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ હરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ રહેલા છો। આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે। મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે। હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને દ્રષ્ટિ સંબંધી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે અને થાય છે તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું। તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું। હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો। અને ફરી ફરી આવા દ્રષ્ટિ સંબંધી દોષો ત્યારે પણ ન કરું એવી આપ મને શક્તિ આપો। હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય। અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય